session moderator today. All the senior person who are present in the attendee of the webinar today, and my dear colleagues, I welcome you to the virtual CP program on HUF formation and taxation. I would like to inform you that we are organizing a 3-day virtual refresher course for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination relating to IBC. It's second week of October. The dates have not been finalized and the process for approval is going on. We have already received names for 35 participants and the maximum limit will be 50 participants. So if anybody is interested and has not given their name till now, kindly forward your consent in the mail ID of branch. Also, please forward your suggestions of organizing more CP virtual programs on topics which have not been covered so far. Without taking much of time, I would like to hand over the session now to Pankaj again. Thank you. Thank you, ma'am. To begin this session, I would like to give a brief profile of our speaker, CA Dr. Girish Ahuja. So, graduated from Shriram College of Commerce in the year 1965, cleared Chartered Accountancy in the year 1970 with rank in both intermediate and financial examination. PhD from Faculty of Management Studies, New Delhi, practicing as a chartered accountant in the field of direct tax. Sir is also nominated by Government of India as a member of Task Force for redrafting of income tax and new income tax laws, and reports thereto was submitted to Finance Minister on 18/8/2019. Nominated by the Government of India as an independent director to the Central Board of Directors of State Bank of India, nominated by Government for Supreme Court to Board of Directors of Unitech Limited, independent director of Ruchi Soya Industries, independent director of other 3 limited companies. So is also nominated of high-powered committee constituted by Government of India under the chairmanship of Justice AP Shah to look into issue of applicability of MAT provisions in case of foreign companies, and also other issues applicable on direct tax provisions which may be referred by government or CBDT from time to time. Sir has also authored more than 25 books and has delivered more than 3,200 lectures. We are always proud to have with you. So to begin the session, I would like to hand over to our program moderator, CS Sumit Agarwal. Over to you, sir. Thank you, Pankaj. First of all, I would like to thank and congratulate the Managing Committee of Ranchi branch that they have chosen a long-awaited topic of taxation and creation of HUF. In this era of nucleus family, when nucleus family is gaining prominence and popularity, we tax practitioners have always preferred to have an HUF concept in our taxation. What are the nitty-gritties of HUF, taxation of HUF, how it is created, how the assessment is done, and what benefits can be taken by tax assessees by forming HUF. These are all these points where we would like to listen to our Honorable Dr. Girish Ahuja. As Pankaj already said, Dr. Girish Ahuja is very eminent and learned speaker on these topics. I just I was just talking before the commencement of this program that few months ago, I had an opportunity to listen to Dr. Ahuja on the Hindu Succession Act. He deliberated upon the topic so diligently that this complicated topic has become so easy for us that we can we understood it thoroughly. Thank you, sir, so much. And I, on behalf of Ranchi branch, welcome you to deliberate upon the HUF creation and taxation. Thank you, sir. Please. Good evening to everyone. Chairperson of the Ranchi branch of Institute of Chartered Accountants of India, Srimati Manisha Bayani ji, Pankaj Makkad ji, and of course the coordinator of the today's program, Mr. Sumit Agarwal ji, the other
the friends sitting in front of me, ladies and gentlemen. Well, friend, let me tell you, the topic saying formation or a creation or how do you create a HUF? HUF is never created. It is created by law. You don't form an HUF. HUF is a by process of law. We are mistaken on this. For income tax purposes, it will be a little different. But otherwise, you don't form an HUF. The day you get married, according to Hindu law, I'm saying Hindu law, I'm not talking about income tax. The day you get married, there is Hindu undivided family. The day you get married, there is a Hindu undivided family. It is not by act of parties. Partnership is by act of parties. You join, you two or more persons join to do any business, you form a partnership. There is no question of forming a partnership, forming a Hindu undivided family. It is automatically created by law. The day you get married. But in Hindu laws is different. In income tax, they say that to form a new HUF, Sumit, I'm saying to form a new HUF, you need to have two co-parsons. I never said two members, two co-parsons. A co-parsoner is always a member, but a member may be a co-parsoner or may not be a co-parsoner. That is the basic thing. Because unless you have a co-parsoner, where is the question of partition? How can you ask a partition? There is only one co-parsoner and one member. I'm not saying that you cannot continue with HUF. If once HUF is formed in income tax, then if some member, some co-parsoner dies, but there are two persons, one co-parsoner, others, they can continue the HUF. There is no problem. HUF can continue to exist even if there is one co-parsoner by succession or whatever may be. But when you form a new HUF, income tax says you must have, what should you have? This is not formed. Mr. Sumit is saying something. What should you have? Two co-partners. What that is second co-partner? Can you form a HUF with two brothers? No. No. So what should you have? Son or daughter. Yes, HUF is formed like this. You need to have lineal descendant. The moment I say lineal descendant, it will include son or daughter. किसी जमाने में कहते थे सन होना चाहिए, एकदम निकलता था मुंह से, वो बातें छोड़ देना। ये कि सन 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 जो कहते कहते अब थक गए थे, अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। You need to have a child, you need to have a lineal descendant. हस्बैंड एंड वाइफ को बनती है HUF, लेकिन इनकम टैक्स कहता है मुझे क्या बना लो, घर पे रखो अपनी HUF। हिंदू लॉ में बन गई तो बन गई, मुझे क्या करना है? मेरे पास तो दो चीजें आना तब पता कि HUF है। एक तो कॉर्पस होना चाहिए, मतलब कैपिटल होनी चाहिए। अरे सर आप बिजनेस शुरू करते हो शेयर, अगर पार्टनरशिप का, तो शेयर कैपिटल चाहिए ना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल चाहिए। कंपनी चलाते हो तो शेयर कैपिटल चाहिए। इंडिविजुअल भी बिजनेस करता है तो उसको भी कैपिटल चाहिए। अरे अगर फर्म को कुछ काम करना है तो फर्म के पास भी तो कॉर्पस होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। कहां से आएगा? अरे कहां से आएगा? वो करता, एक तो कहता है कॉर्पस और कैपिटल कहां से आएगा, और दूसरा कहता है यू नीड टू हैव टू को-पार्टनर। इसलिए HUF बन तो जाती है हस्बैंड वाइफ की, लेकिन लीगली मुझे पूछो इनकम टैक्स में, कह रहा हिंदू लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगली तो जब तक चाइल्ड नहीं होगा इनकम टैक्स में जाने का कोई फायदा नहीं होता है। हालांकि आप लोग, क्या मैं और आप, कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने हस्बैंड वाइफ की भी HUF बनाई है और चल रही है और असेसमेंट भी हो रही है, क्योंकि दो टॉपिक किसी को कुछ नहीं आते, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरा चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी को कुछ नहीं आता। ट्रस्ट मी, नो वन नोस। ना हिंदू अनडिवाइडेड लोगों को मालूम है, इवन कोर्ट्स को भी मालूम नहीं है। सर अभी भी कोर्ट ने जजमेंट दी नहीं, वो अपनी जजमेंट को ओवर रूल करके, डिवीजन बेंच की जजमेंट को ओवर रूल करके नई जजमेंट दी। तो इसलिए एक बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन वो चल रहा है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बाद तो बहुत ही कॉन्सेप्ट ही बदल गया। मैं करूंगा, बट पहले दिमाग में सोच लेना कि आपने क्या किया है,
मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं उसके बाद तो आप सोच इधर उधर देखेंगे और कहेंगे यार हम तो ऐसे ही कराए जा रहे हैं। अरे आप क्या, मैं भी कराता रहा। मैं तो मेरी जब डॉटर पैदा हुई 1974 में, मैंने एचयूएफ बना लिया अपनी डॉटर के साथ। चाइल्ड था, एचयूएफ बना लिया। मुझे पता ही नहीं था कि डॉटर के साथ एचयूएफ बना ही नहीं सकते थे। तब यू नीड टू हैव सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मुझे क्या पता, सीए पास करी 70 में, इतनी समझ कहाँ थी। 74 में अपने आप को ज्यादा समझते थे, उठाकर बेटी पैदा हुई, एचयूएफ बना ली। असेसमेंट कराते रहे, होती रहे, हमें कोई परवाह नहीं, करते रहे, हो गई असेसमेंट, चलती रही। 2005 9 तारीख को 9/9/2005 में जब ये नया लॉ आया, अमेंडमेंट आई, तो पता लगा कि डॉटर तो अब हुई है को पार्सनल। पहले तो डॉटर कभी होती ही नहीं थी को पार्सनल। पहले तो यू नीड टू हैव ए सन, लेकिन मेरी तो चल रही थी 74 से। अरे बताइए, 74 से लेकर 31 ईयर तक मेरी असेसमेंट होती रही। मुझे भी नहीं पता, मेरे को तो फिर भी कुछ पता होगा, डिपार्टमेंट को वैसे ही कुछ नहीं पता होता इस एचयूएफ का। हम जो कहते हैं वो मान जाते हैं। बना दी 2005 में, जब पता लगा कि ये तो मैं गलत बना के बैठा हुआ था, फिर भी मैं चुप रहा, बोला नहीं किसी को। जब 6-7 साल बीत गए तब मैंने शुरू कर दिया, अरे मैंने तो एचयूएफ बनाई हुई है 1974 में, क्योंकि पता था अब क्या कर लेंगे, 6 साल से पुराना केस से खोल नहीं सकते। तो उसके बाद 2005 के बाद तो आ ही गया था एचयूएफ, तो मैंने फिर लोगों को बताना शुरू किया। नहीं तो मुझे तो खुद नहीं पता था, मैं आपको क्या बताऊं। तो अपनी गलती एडमिट कर लेनी चाहिए कि किसी को कुछ नहीं आता है। आज आप कई बातें सुनेंगे और आपको लगेगा क्या ये बातें कर रहे हैं, हम तो इतनी असेसमेंट करा लाए। अरे आप क्या करा लाए, मैं भी कितनी असेसमेंट करा के लाया और औरों की भी करा दी। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज ए ब्लिस। हम कहते हैं ना, इग्नोरेंस ब्लिस होती है। चलता रहा। लेकिन अब ध्यान रखना, अब इग्नोरेंस ज्यादा काम नहीं करे। आगे से फेसलेस असेसमेंट के चक्कर आ गए। समझ में आ गया ना मेरा क्या कहना है। अब वो कहते थे देख लेंगे। जब किसी का 143(2) का नोटिस आता था तो वो हमारे पास आता था, हम कहे जा यार ठीक है ना, मैं हूं ना, चिंता मत कर, जा आराम कर। हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते थे। अब किसी को ये मत कह देना मैं हूं ना, अब तुम नहीं हो, अब बदल गया अब जमाना। इसलिए सोच के चलना कि जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ करा लो। वो जमाना था जब हो जाता था, अब तो भूल जाओ। क्लियर हुआ सर? पहले ये बात क्लियर हो गई। तो एचयूएफ हिंदू लॉ में, द डे यू गेट मैरिड इट इज एचयूएफ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय लॉ। आपको कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर एचयूएफ बनानी है तो कैसे बनाएंगे? मैंने कहा चाइल्ड होना जरूरी है। आगे से अब जो पुराना हो गया, चाइल्ड होना जरूरी है, सन और डॉटर। अब सेकंड पॉइंट क्या हुआ, बना ली तो क्या हुआ, इनकम टैक्स वाला अपने घर बैठो, मुझे क्या लेना देना। कोई इनकम आएगी तो मैं टैक्स करूंगा ना, जब इनकम नहीं तो मैंने क्या करना। अब तो वेल्थ टैक्स भी नहीं है। पहले तो वेल्थ टैक्स का होता था, भाई चलो वेल्थ टैक्स लगा लूंगा, वेल्थ टैक्स भी नहीं है। तो कब बनाओगे, कब करोगे? वो कहता है मुझे नहीं पता है, यू नीड टू हैव कॉर्पस। तो सुमित जी कॉर्पस कहां से आएगा, मैंने कॉर्पस कहां से आएगा, कैपिटल कहां से आएगी? किसी ने कहा फादर की डेथ होने के बाद मेरी एचयूएफ तैयार है। मैं कहा ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो? वो हिंदू सेक्शन है 1956 जब से आ गया है। तो जो भी चीज मिलती है, अगर तो विल है तो बात अलग है। अगर सक्सेशन है विदाउट विल, विदाउट टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती है लीगल एयर को। दे गेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट एज एचयूएफ। ये तो आपको पता ही है। और आपने कहा मैंने लेक्चर सुना, तो लेक्चर में मैंने यही तो बताया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती है, एचयूएफ ऑटोमेटिकली नहीं बनती कि फादर मरा और हम लोगों ने एचयूएफ बना ली। सबने बनाई, बाप ने बढ़ते ही जो प्रॉपर्टी फादर से आई हमारी एचयूएफ तैयार। अरे यार किसी और को बोलना, वो जमाने 56 से बाद बंद हो गए। अब बना ली है तो बनाए रखो, मुझे उससे क्या लेना देना। लेकिन बनती नहीं है, आपको बता दिया बनती नहीं है। आपने बना ली है तो अलग बात है, लेकिन बनती नहीं है। तो कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट करेंगे एचयूएफ? एचयूएफ तो है, बच्चा पैदा होते ही है। अगर शादी होती ही है, बच्चा पैदा होना तो सेकंड बात है कि इनकम टैक्स में है, तो भी क्या करोगे? पैसे इनकम आएगी तो होगा ना। उसके लिए कैपिटल फंड चाहिए,
उसके लिए कॉर्पस चाहिए। कहां से आएगा? दो ही तरीके हैं सुमित जी एचयूएफ बनाने के। एक है बाय विल, कोई भी विल कर सकता है that after my death such and such property will go to HUF of such and such person। मैंने ये नहीं कहा HUF of such and such my son, वो तो फादर कर सकता है, लेकिन सुमित जी आप भी मुझे विल कर सकते हैं, मैं भी आपको विल कर सकता हूं। विल तो कोई भी किसी को कर सकता है, विल तो स्वीट विल है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं। विल का मतलब ही यही है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी की भी एचयूएफ के लिए विल कर सकता हूं। लिखना पड़ेगा, देयर शुड बी ए रिसाइटल इन द विल। रिसाइटल समझ गए ना, कि विल में लिखा जाएगा दैट आफ्टर माय डेथ सच एंड सच प्रॉपर्टी विल गो टू एचयूएफ ऑफ सच एंड सच पर्सन। अगर फादर ने लिख दिया इट विल गो टू माय सन, तो ये एचयूएफ नहीं होगी। एचयूएफ तो सन को एचयूएफ नहीं होगी। विल में लिख दिया इट विल गो टू माय डॉटर, जी नहीं, इट विल गो टू एचयूएफ ऑफ माय सन, सच एंड सच सन। तो आपकी एचयूएफ बन सकती है, लेकिन उसमें लिखना पड़ेगा इट विल गो टू एचयूएफ बाय सन। बात क्लियर हो गई? ये तो विल में लिखा है, लेकिन आपको पता है इसका मतलब है जब तक वो आदमी मरेगा नहीं तब तक मेरी एचयूएफ बनेगी नहीं। को कैपिटल तो तभी आएगा ना जब वो उसकी डेथ होगी, क्योंकि विल तो एग्जीक्यूट तब होती है जब डेथ हो जाएगी। तो तब तक का इंतजार करना पड़ेगा एचयूएफ बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। एचयूएफ तो है, पैसों के लिए तो करना पड़ेगा ना। सुमित जी मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो पंकज मैंने कहा पैसों के लिए तो करना पड़ेगा। अरे भैया और तरीका भी है, बड़ा सिंपल तरीका है। सुमित जी 2,51,000 की गिफ्ट ले लीजिए, 2,51,000 की गिफ्ट ले लीजिए। क्योंकि जब आप गिफ्ट लेंगे तो अपने मेंबर से मत लीजिए, मेंबर से लेंगे तो हो सकती है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 64(2) लग जाता है। अगर आप मेंबर से गिफ्ट ले ले तो किसी भी अमाउंट की ले ले, करोड़ रुपया भी ले ले, लेकिन क्या होगा 64(2), हालांकि 56(2)(10) नहीं लगेगा। 56(2)(10) में लिखा है मेंबर से लेना एचयूएफ अलाउड है, लेकिन वो 56(2)(10) नहीं लगेगा, लेकिन 64(2) लग जाएगा। Where a self-acquired asset is converted into HUF asset or transferred to HUF without an adequate consideration, then the income from that asset shall be clubbed in the hands of the transferor। तो क्या फायदा हुआ? आपने तो गिफ्ट कर दी और गिफ्ट मेंबर से ले ली, HUF तो बन गई, लेकिन इनकम तो क्लब होगी। लेकिन सुमित जी हम तो तब भी बनवा देते हैं। आप कहेंगे कैसे बनवा देते हो सर? अरे हमने 1 करोड़ रुपया दे दिया HUF को, आप कहेंगे क्लबिंग होगी। मैंने कहा ठीक है क्लब कर लेना। मैंने वो 1 करोड़ रुपया बॉन्ड्स में लगा दिया, जो टैक्स फ्री बॉन्ड है, 5.5-6% मिल जाता है, लगा दिया। जब इनकम आएगी तो वो इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स फ्री बॉन्ड की, तो क्लबिंग में भी तो एग्जेम्प्ट होगी, कुछ नहीं लगेगा टैक्स, क्लबिंग होगी नहीं। लेकिन जो इनकम से इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी, इनकम से इनकम आएगी वो क्लब नहीं होगी। तो आगे जो इसकी इनकम आएगी वो एचयूएफ के हाथ में टैक्स होगी। इनकम इज क्लब्ड, इनकम और इनकम इज नॉट क्लब। लेकिन क्यों भी ऐसा प्रॉब्लम करो, अपने हिसाब से किसी से भी गिफ्ट ले लो 2,51,000। आप कहेंगे 2,51,000 की फिगर क्यों बोल रहे हैं, ये कौन सी शादी की फिगर है या 51,000 ये? अरे भैया 2 लाख सेक्शन 56(2)(10) लग जाएगा, क्योंकि रिलेटिव से नहीं ली। 56(2)(10) लगा सुमित जी, 2,50,000 माफ हो जाएगा। एचयूएफ को 250 माफ है, बाकी कितना बचा? 1,000। कितना टैक्स लगा? 50 रुपए, 5% प्लस 4%, 52 रुपीज लग के आपकी एचयूएफ तैयार है। 52 रुपए में एचयूएफ तैयार है। इनकम टैक्स भी खुश और आप भी खुश। क्यों? क्योंकि आप रिटर्न भरेंगे। आप 2.5 लाख से कम भी ले सकते हैं, लेकिन फायदा क्या होगा? पता कैसे लगेगा डिपार्टमेंट को कि आपकी एचयूएफ बन गई? आपके पास कॉर्पस आ गया, आपने 50,000 से कम ले लिया, टैक्स बचा रहे। अरे क्यों बचा रहे हो टैक्स यार? 52 रुपए दो ना सरकार को, सरकार भी खुश हो जाएगी। 52 रुपए दे के टैक्स बना लो। अरे 4,01,000 रुपए की गिफ्ट ले लो। आप कहेंगे कैसे 4,01,000 की ले लूं? अरे 1.5 लाख रुपया एटीसी का बेनिफिट ले लेना, एटीसी का बेनिफिट 1.5 लाख लेना, 2.5 लाख माफ करा लेना,
और 1000 रुपए पे 52 रुपए दे देना, HUF तैयार। लेकिन गिफ्ट सुमित जी जेन्युइन होनी चाहिए। गिफ्ट कोई हमारी कंट्री में गिफ्ट दी थोड़ी जाती है, हमारी कंट्री में तो गिफ्ट ली जाती है। कौन देता है किसी को गिफ्ट? या तो गिफ्ट ली जाती है सर, भाई भाई को भी गिफ्ट नहीं देता है। आजकल का जमाना बदल गया है, भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, कोई गिफ्ट देने को तैयार नहीं है। वो जमाना अलग था। हाँ, माँ बाप करते हैं सेट, उनकी मजबूरी है, बच्चों को सेट करते हैं तो वो गिफ्ट कर देते हैं। या एक और प्राणी हमारी कंट्री में है, बेटी का बाप, जिसको गिफ्ट देनी पड़ती है शादी में। ये तो कौन किसको गिफ्ट देता है यार? देता है कोई? लेकिन यहाँ तो रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है, रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है सर। या तो सलमा भी कृष्ण कुमार को गिफ्ट देती है। कितना नेशनल इंटीग्रेशन हमारी कंट्री में है, देखा आपने? कितना प्यार है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये है सर हमारी कंट्री का कमाल, क्योंकि यहाँ गिफ्ट देते नहीं है, ली जाती है। समझ में आ रहा है? लीजिए, लेकिन गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। अगर वो गिफ्ट जेन्युइन नहीं हुई तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 115 BBE लग जाएगा, और 115 BB में 78% टैक्स लगेगा। 78% टैक्स लगेगा, क्योंकि वेयर देयर इज टोटल इनकम इंक्लूड्स any income referred to in 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D, such income shall be taxable at a special rate of 60% plus surcharge 25% plus education cess 4%, तो 78 लग जाएगा। और बाई चांस उसको इनकम नहीं मानी तो फिर उसके ऊपर 10% वो भी लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन का मतलब समझे? बताने की जरूरत है आप लोगों को। कभी गिफ्ट भी जेन्युइन होती है, लेकिन होती है। अगर आपने दिया, आप देना चाहते हैं मुझे, सुमित जी मुझे क्या तकलीफ है, दे दीजिए गिफ्ट, मैं ले लूंगा अपने HUF के नाम पर और HUF तैयार हो जाएगी। वो अलग बात है कि आप कहोगे मेरे पैसे तो वापस कर दे, ये बात ना होने देना, ये नहीं करने देना। ये तो अंदर की बात है, अंदर की बात बाहर नहीं बताई जाती। लेकिन अगर गिफ्ट लेंगे तो आप HUF तैयार हो जाएगी। 2,51,000 की ले लो, 4,01,000 की ले लो, कुछ भी ले लो, गिफ्ट ले लो। और जब तक आप गिफ्ट दोबारा भी ले सकते हो अगले साल, जब तक आपका अच्छा कैपिटल ना बन जाए तो आप गिफ्ट ले लो, कौन मना करता है। लेकिन मेंबर से गिफ्ट लेना, मैंने पहले बोल दिया, HUF तो बनती है लेकिन 64(2) लग जाता है, तो अच्छा नहीं रहता है। मेंबर से मत लेना, हालांकि लीगली अलाउड है, लेकिन मेंबर से गिफ्ट लेकर हमारे को क्लबिंग का रगड़ा हमेशा रहता है, और हम चाहते नहीं है कि क्लबिंग का कोई चीज भी हमारे सामने आए। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। अदरवाइज तो गिफ्ट लेना कोई मना नहीं, कोई मना नहीं है गिफ्ट लेना, आप जरूर लीजिए गिफ्ट, आपको अलाउड है। ये क्लियर हो गया सर? तो मैं आगे बढ़ूं? ये क्लियर हो गया? गिफ्ट ले सकते हैं और HUF बन जाती है। लेकिन मेरा कहना मान लेना, HUF ऐसे बनाना, मतलब चाइल्ड होना जरूरी है। पहले अगर बना रखी है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाइल्ड होना जरूरी है। अगर करवा रहे हैं असेसमेंट तो करने दीजिए ना, क्योंकि उसके बाद दोबारा जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज बता देना, जब HUF बनती है तो फादर चाइल्ड में बनी, तो ये नहीं हो सकता फादर के 2 बच्चे हुए तो फादर एक बच्चे का साथ अलग बना ले और फादर दूसरे बच्चे के साथ अलग बना ले, ऐसा कोई लॉ नहीं है। HUF फादर की एक ही होती है। मेरी अगर HUF बनेगी तो मेरा एक बेटा है, मेरे ये 2 बेटे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे पैदा होंगे बाई बर्थ वो मेरी HUF के को पार्टनर बन जाएंगे, बाई बर्थ। मैं उनको रोक नहीं सकता, ये नहीं कह सकता ना भैया तू तो कपूत है, तू तेरे को नहीं लूंगा, ये तो रूल ही नहीं है HUF में। बाई बर्थ, सपूत हो या कपूत हो। मैं बेटियों के बारे में सपूत और कपूत की बातें नहीं करता, लेकिन बेटियों के बारे में तो ये कहावतें हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बेटियां नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन बेटे तो कुछ भी हो सकते हैं। आजकल का मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कोई मुझे कह देगा क्या बातें कर रहे सर, हम तो बड़े शरीफ हैं। अरे कैसे कहते हो आप शरीफ है? मुझे सुमित जी एक आदमी बता दो, हम सैंडविच सोसाइटी हो
आप कहेंगे क्या आप अपने माँ बाप से भी डरते हो और अपने बच्चों से भी डरते हो? मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। मुझे एक आदमी बता दे यहां बैठा हुआ जो कहेगा मैं अपने बच्चों से नहीं डरता। झूठ बोलता है वो, ये कहेगा तो वो कह ही नहीं सकता कि मैं अपने बच्चों से नहीं डरता। सर जमाना ही बदल गया है सर। हम तो अपने माँ बाप से भी डरते थे, अपने बच्चों से भी डरते। ये क्या जमाना आ गया है? हमारे जमाने में 8-8 10-10 बच्चे होते थे, 5 6 7 8 9 10, कोई परवाह ही नहीं करता था हमारी, अपने आप ही पल गए। अब तो बच्चे 2 या 1 ही है और उनको भी पता है हम 2 या 1 ही हैं, डराते हैं हमें। अरे एक्सप्लॉइट करते हैं सर, एक्सप्लॉइट, सेंटिमेंटली एक्सप्लॉइट करते हैं और हम खुश होकर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हमें पता है कि हमारा बेवकूफ बना रहा है ये मेरा बच्चा, फिर भी हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम हर चीज उसको दे रहे हैं। कमाल है सर। हमारे जमाने में तो हम अपने आप ही सीए कर गए। मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया था, किसी को पता नहीं था बीकॉम होती क्या उस वक्त। वो तो नंबर नहीं आए थे साइंस में मेरे इतने, तो मेरे को बीकॉम में जाना पड़ गया, कॉमर्स में मेरे को मिल गया। नहीं तो मैं कॉमर्स उस वक्त हमारे, मैं 62 में कॉलेज गया था सर, आप तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं 65 में बीकॉम कर चुका हूं, 67 में एमकॉम कर ली थी, 70 में मैंने सीए कर ली थी। अब कोई कहेगा सर कि आपकी तो उम्र हमें पता लग गई, तो पता लग गई, मैं कौन सा लड़की हूं ना पता लगे आपको। आई एम 74 प्लस, 74 प्लस, ये मैं बता दूं। लेकिन एक चीज बता दूं, हमारे जमाना डिफरेंट था, मेरे बच्चों का भी जमाना डिफरेंट है। अब तो खतरनाक जमाना है, अब तो खतरनाक जमाना है। मेरे बच्चे मेरे से भी डरते हैं और अपने बच्चों से ज्यादा डरते हैं। उनको मैं कहता रहता हूं ये क्या जमाना आ गया है। कहते क्या करें, क्या करें, जो हमें नहीं मिला हमने सब कुछ उनको जिंदगी में दे दिया। सर पैसे की वैल्यू नहीं हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों का, मेरा मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन को, मैं अपने बात नहीं कर रहा, हमारे बच्चों को, मेरे बच्चों को तो फिर भी थी, क्योंकि अब उनकी उम्र ही, मेरा बड़ी बेटी आज 46 साल की हो गई है, तो उसका क्या कहूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन 46 साल वालों के बच्चों से पूछो, वो कहते हैं हम तो बच्चों से बहुत डरते हैं। क्या है यार, माँ बाप अपने बच्चों से डर रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप को सेंटिमेंटली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बता दी, बच्चा पैदा होते ही अगर आपकी एचयूएफ है तो उसका लीगल राइट है, आप उसको बाहर नहीं कर सकते। आपने एक चाइल्ड के साथ एचयूएफ बनाई, दूसरा बच्चा पैदा हो गया, तीसरा बच्चा पैदा हो गया, मैं अब बेटा नहीं कहूंगा, चाइल्ड पैदा हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपकी एचयूएफ का को पार्टनर है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने इसको नहीं रखा, वो को पार्टनर है। और सुनिए, ग्रैंड चाइल्ड जो पैदा हुआ वो भी को पार्टनर है, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो पैदा हुआ वो भी को पार्टनर है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरे एचयूएफ में मेरे बच्चे को पार्टनर है, मेरे बच्चों के बच्चे को पार्टनर है, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे को पार्टनर है। 4 जनरेशन को पार्टनर होती है बाय बर्थ, 4 जनरेशन। सुन रहे हैं सर सभी जी, 4 जनरेशन। 5वीं जनरेशन मेंबर है लेकिन को पार्टनर नहीं। आप कहेंगे क्या फर्क है सर? मेंबर कैनॉट आस्क फॉर पार्टीशन, बट ए को पार्टनर कैन एनी टाइम आस्क फॉर पार्टीशन। मैं अपने दादा की प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकता हूं, मैं अपनी परदादा की प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकता हूं अगर मैंने अपना डिमांड कर ली तो। ए को पार्टनर कैन आस्क फॉर पार्टीशन, ए मेंबर कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। तो जो 5th जनरेशन मैंने बोली ना, वो मेंबर है, को पार्टनर नहीं। मेरी बीबी भी मेरी एचयूएफ में मेंबर है लेकिन को पार्टनर नहीं। मेरी अगर एचयूएफ है, मेरी बीबी उसमें है, लेकिन वो पार्टीशन नहीं करा सकती। मैं हल्के से कहूंगा, हो सकता है वही कराती हो, लेकिन करा नहीं सकती, वो करा नहीं सकती है। डॉटर करा सकती है, बेटा करा सकता है, लेकिन वाइफ नहीं करा सकती, क्योंकि वाइफ को पार्टनर नहीं होती। हालांकि वाइफ को शेयर मिलता है जब भी पार्टीशन होगा। मेरी एचयूएफ का, मेरे फादर की एचयूएफ का नहीं, मेरी एचयूएफ का शेयर मिलेगा, लेकिन शी कैन नॉट आस्क फॉर पार्टीशन। 5वीं जनरेशन सुमित जी पार्टीशन नहीं करा सकती जब तक कि चारों जनरेशन जिंदा है। नंबर 1 फादर, उसके नीचे 1st जनरेशन,
फिर दूसरी, फिर तीसरी। जो नीचे वाली जनरेशन है वो कर नहीं सकती, लेकिन जब तक फादर की डेथ नहीं होगी, 5वां नंबर 4 नंबर नहीं बढ़ेगा, 5वां नंबर 4 नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर 2 नंबर की डेथ हो गई कुछ नहीं होगा, 5वां 4 नहीं बनेगा। 3 की डेथ हो गई, 5वां 4 नहीं बनेगा। चौथी जनरेशन की डेथ हो गई, वो 5वां 4 नहीं बनेगा। लेकिन पहले वाले की डेथ हो गई, जिसने एचयूएफ बनाई थी अपनी, जिसकी एचयूएफ थी, उसकी डेथ हो गई, तो 5वां नंबर ऑटोमेटिकली 4 नंबर बन जाएगा। ये भी समझ में आया? जब तक 1 नंबर जिंदा है जिसकी एचयूएफ है, जिसने बनाई, मेरी अपनी एचयूएफ भी है, मैं अपनी फादर की एचयूएफ का भी मेंबर हूं, मैं अपने फादर के फादर की एचयूएफ का भी हूं, मैं अपने फादर की फादर के फादर का भी हूं। मैं अपनी एचयूएफ बना सकता हूं। कैसे बनाई? अभी तो बताया। कैसे बताया? मेरा जिस दिन चाइल्ड पैदा हुआ और मुझे कोई डोनेशन आ गई या गिफ्ट आ गई, मैं अपनी एचयूएफ अलग बना लूंगा। समझ में आ रहा है ना सर? आई कैन क्रिएट माई ओन एचयूएफ। मैं अपने फादर में भी हूं, बाई बर्थ हूं, मैं अपने ग्रैंडफादर में भी हूं, बाई बर्थ हूं। मेरी बहन भी अपनी फादर में है, बाई बर्थ है, बाई बर्थ है। लेकिन जो एचयूएफ बनाता है ना, वो मेल मेंबर होना चाहिए। फीमेल से एचयूएफ नहीं बनती, लेकिन फीमेल क्या बनेगी वो अभी बताता हूं। एचयूएफ मेल की होती है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो फीमेल हो या मेल हो, वो दोनों एचयूएफ के को पार्टनर। ये समझ में आ रहा है? तो जो पहली एचयूएफ बनेगी, जो भी बनाएगा, आप बनाना चाहते हैं तो आपकी बीवी नहीं बना सकती। सुमित जी, आप बना सकते हैं अगर आपकी ऑलरेडी नहीं है तो। आप अपनी फादर की एचयूएफ में होंगे, आपके फादर की फादर के भी हो सकते हैं, होंगे, अगर वो चल रही है एचयूएफ। एचयूएफ चल रही है तो चलती रहेगी। आप बना, जब तक पार्टीशन ना करो एचयूएफ चलती रहती है। जब तक सिर्फ एक ही पर्सन ना रह जाए, एचयूएफ चलती रहती है। वो तो चलती रहती है, लेकिन आप अपनी भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? या तो विल से, कोई विल कर दे प्रॉपर्टी आपकी एचयूएफ को, या कोई गिफ्ट ले लो और आपकी एचयूएफ तैयार है। ये पहले फॉर्मेशन समझ में आ रही है? लेकिन कोई मुझे पूछता है, सर ये एचयूएफ जो बनाते हैं इसकी क्या डीड बनानी होती है? मैंने कहा, क्या पार्टनरशिप कर रहे हो जो डीड चाहिए आपको? पार्टनरशिप में डीड होती है। अब बैंक के पास जाओ ना, वो कहते हैं जी एचयूएफ की डीड दे दो। अब मैंने कहा, भैया ये क्या चीज होती है, ये डीड दे दो? अरे मैंने कहा, मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं अपना अकाउंट खोलना आता हूं, तो क्या मेरे से डीड मांगता है? कहता नहीं, मैं तो डेट ऑफ बर्थ मांगता हूं, लाओ मेरा पैन दे दो या आधार कार्ड दे दो, मैं बैंक अकाउंट खोल देता हूं। तो मैंने एचयूएफ में भी यही है भैया, एचयूएफ में डीड नहीं होती है। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया, एचयूएफ अपने आप बन गई। कहता नहीं, फिर कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? मैं क्या, मैं लिख के दे देता हूं कि ये एचयूएफ है, ये मेरे को पार्टनर है और ये मेंबर है। बस एक कागज या एक मेमोरेंडम बना के दे दो उसको। लेकिन कोई डीड वीड नहीं होती है। अकाउंट खोलना तो डीड थोड़ी होती है। आप लिख के दे सकते हो कि मेरी एचयूएफ है और इसमें ये है और ये इसके को पार्टनर है और ये इसके मेंबर है और ये वाले ऑपरेट करेंगे। और आप कर्ता का वो पैन नंबर ले लेते हैं, एचयूएफ का पैन नंबर अप्लाई कर दीजिए, मिल जाता है। एचयूएफ का पैन नंबर आप तो बगैर पैसे के भी अप्लाई, मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि उसमें कॉर्पस होना जरूरी है। अरे आप एक बच्चे का भी एचयूएफ बना सकते हो, क्या कहते हैं एचयूएफ, सॉरी, बच्चे का भी आप ले सकते हो पैन। तो एचयूएफ का पैन ले लो, पैन लेके अपना अकाउंट खोल लो। लेकिन कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता एचयूएफ बनाने में। लेकिन एचयूएफ आप बना सकते हैं, जब मर्जी बनाइए एचयूएफ बन जाती है। ये बात पहले समझ में आ गई कि एचयूएफ कैसे बननी, अकाउंट कैसे खुलना है, पैन नंबर कैसे अप्लाई करना है। जैसे साथियों का करते हो वैसे कर दो, एक एफिडेविट दे दो अगर आपको देना है तो, कि ये एफिडेविट है, ये मेरा, ये मैं करता हूं, ये मेरे मेंबर है, ये मेरे वो है, और उसको एफिडेविट दे के एचयूएफ तैयार हो जाती है। क्लियर हुआ सर? एचयूएफ बन जाएगी, पैन नंबर ले लोगे। और मैं बताऊंगा, अच्छा तो यही करना, बच्चा पैदा उस दिन करना। लेकिन वैसे हस्बैंड वाइफ में भी एचयूएफ होती है, कोई मना नहीं करता है। लेकिन क्यों कंसेप्ट इनकम टैक्स में लड़ाई करने का करते हो? आपस में दिक्कत क्या है? नहीं चल रहा है तो चलते रहिए, नहीं तो बच्चा पैदा होने के बाद एचयूएफ कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई सवाल है अभी तक तो मैं बोलूं, नहीं तो आगे चलूं? नहीं सर, कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4। हाँ ले लीजिए, साथ साथ अच्छा रहेगा। एक मिस्टर वसुधा चौरछरिया ने लिखा है, कैन एचयूएफ गिव गिफ्ट्स टू इट्स मेंबर्स? ये तो क्वेश्चन आगे आना है। ठीक है, एचयूएफ गिफ्ट ले सकती है, दे नहीं सकती। राइट। आप समझेंगे क्यों? सुन लीजिए, हमारे इनकम टैक्स एक्ट में
31 दिसंबर 1978 के बाद पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है। 31 दिसंबर 1978 कंप्लीट पार्टीशन अलाउड है। अगर आप अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को गिफ्ट करेंगे एचयूएफ की, तो वो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा, और पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है। एचयूएफ कैन नॉट मेक ए गिफ्ट, एचयूएफ कैन टेक ए गिफ्ट। हाँ, कोई रिलीजियस पर्पस के लिए, कोई पाइस पर्पस के लिए आपने गिफ्ट करी तो करते सकते हैं, लेकिन करता ये नहीं कह सकता कि मैंने ये गिफ्ट कर दी। अरे बाकियों का हक पूरा है, पैदा होते ही। वो मालिक नहीं है, बाप जिसने एचयूए बनाई वो मालिक नहीं है, वो भी वन ऑफ द को पार्टनर्स है। अगर मैंने एक एचयूए बना ली, सुमित जी आपने एचयूए बनाई, गिफ्ट लेके बना ली, बिल करके बनवा ली, तो आप एक आदमी हैं, आपका बच्चा का पूरा हक है पैदा होते ही, और दूसरा बच्चा पैदा है तो उसका भी हक है, तीसरा पैदा तो उसका भी है, और बच्चे का बच्चा हो गया तो उसका भी है। तो इसलिए ये मत समझना मेरी एचयूएफ, ये मेरी कुछ नहीं होती। आप हो सकते हैं करता हो, करता ही होता है, लेकिन करता कुछ कर नहीं सकता है गलत काम, क्योंकि उस पर तो दूसरों का हक भी है। करता कभी नहीं कुछ कर सकता, तो इसलिए गिफ्ट अलाउड नहीं है, ये पहले बता दो। सर कुछ मेंबर्स इसमें कुछ पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अपने शेयर का? मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है सर। एचयूएफ का पार्शियल विड्रॉल नहीं होता, करंट इनकम का विड्रॉल होता है। कैसे विड्रॉल होगा वो बताऊंगा। जो आपकी करंट इनकम है उसको आप पहले टैक्स दे दीजिए, और बाकी आपस में बांट सकते हैं। किस रेशो में बांटनी पड़ेगी ये मैं बाद में बताऊंगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज डॉटर इन लॉ पार्ट ऑफ एचयूएफ? शी इज ए मेंबर बट नॉट ए को पार्टनर। उसको कुछ मिलता नहीं है, ऐसे ही मेंबर बन गई। जो हम अपना पैसा खर्च करते हैं एचयूएफ के ऊपर, वो उसका एंजॉय कर सकती है, लेकिन ना तो कोई पार्टीशन करवा सकती है, ना ही उसको कोई शेयर मिलता है ना। अरे बीवी नहीं करा सकती, बहू क्या करेगी? बीवी भी पार्टीशन नहीं करा सकती। बेटा करा सकता है, बीवी नहीं करा सकती। पोता करा सकता है, पोती करा सकती है, नाता करा सकता है, नाती करा, लेकिन बीवी भी नहीं करा सकती। आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन बेटी करा सकती है, ये है। तो वो भूल जाइए कि नहीं सर। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ वाइफ इन एचयूएफ एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? वो करेंगे बाद में, जब पार्टीशन में आएंगे। ये सारे सवाल प्री आ गए। मैं तो अभी देखिए, पैदा हुए नहीं है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। अभी तो एचयूएफ बना रहा हूं मैं यार, अभी से ही पार्टीशन करने लग गए। क्या यार, कुछ देर तो इंतजार कर लो। हद है, अभी शुरू नहीं करी एचयूएफ, पार्टीशन हो गया पार्टीशन। तो बनाओ ही मत यार, अगर शुरू में ही पार्टीशन कर लेना है तो। इतना मत सो, इतने इम्पेशेंट मत हो, बाद में बताऊंगा। चलिए। What happens to the status of HUF? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बाद में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई बी करता इन माय HUF एंड ऑन सक्सेशन ऑफ माय फादर और ग्रैंडफादर HUF? थोड़ी देर में बताता हूँ कौन करता बनेगा। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ये भी आगे की सवाल है। ये जितने भी सवाल फॉर्मेशन के नहीं पूछ रहे, फॉर्मेशन के पूछो, बाकी तो अभी शुरू हुआ है यार, अभी तो शुरू हुआ है। सर जब HUF के लिए पैन का अप्लाई करते हैं, हाँ जी हाँ, उस समय में डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखना चाहिए? द डेट ऑन व्हिच द फर्स्ट चाइल्ड। आपकी चॉइस है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बेटर तरीका है बच्चा पैदा हो उस दिन का दे दो डेट, वो बेटर रहेगा। लेकिन कोई कुछ कहता थोड़ी है, जब तक इनकम नहीं है तब तक क्या फर्क पड़ेगा यार? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा पैदा, आप बेटर तो यही है जो मैं कहूंगा कि आप उससे बच्चा पैदा होने के बाद करें। हाँ जी, चलिए। फॉर्मेशन हो गई सर? सर फॉर्मेशन में कोई ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। बस फॉर्मेशन हो गई ना। लेकिन मैंने क्या कहा, आप फॉर्मेशन तब करना, मेरा कहना मानकर, जब चाइल्ड हो। जब चाइल्ड हो, जब तक चाइल्ड ना हो फॉर्मेशन करने का फायदा नहीं है। लेकिन कर रखी है तो चुप करके कराते रहना, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू लॉ अलाउ करता है। हिंदू लॉ अलाउ करता है, जिस डे यू गेट मैरिड जॉइंट हिंदू फैमिली। क्लियर हो गया? पंकज प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। कोर्ट केस आल्सो म्यूट नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ, ये है जी सर। देयर इज मेरे को भी म्यूट कर दिया इन्होंने तो। हाँ जी, अब मैं हो गया ठीक। हाँ हाँ सर, हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन आ रहा था?
और मैं बोल रही थी कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है जिसमें ना हस्बैंड एंड वाइफ भी बना सकते हैं एचयूएफ, और उसमें जीता है उसने। मैंने ये बताया जितने भी केसेस है ना वो हिंदू लॉ के हिसाब से है, इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है। मैंने तो बताया हिंदू लॉ में तो अलाउड है, मैंने तो आपको इमीडिएटली कह दिया हिंदू लॉ में अलाउड है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में वो कहते हैं 2 को पार्सन होने तो जरूरी है। तो आप वो इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हस्बैंड वाइफ बना सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं देयर विल बी वुड बी चाइल्ड, बच्चा पैदा होने की पूरी आशंका है, पॉसिबिलिटी है, या अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं बच्चे को, लीगल अडॉप्शन, तो वो चीजें अलग हैं। लेकिन बेटर यही है टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट चाइल्ड के बाद बनाए, लेकिन मना नहीं है, मैंने बार बार बोल दिया, ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन और है, मिस्टर सुमित कुमार लिखते हैं, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आई हैव सीन दैट मिस्टर ए हैज 2 sons, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, एंड दे हैव फॉर्म HUF, मिस्टर A HUF, सेकंड मिस्टर B, मिस्टर A सर ये जमाने चले गए ड्यूरिंग आर्टिकल। ओ हाँ, आर्टिकल तो मेरे भी तो आर्टिकल थे, मुझे नहीं आता था तो आर्टिकल को क्या आना है, मुझे नहीं आता था, अपनी बेटी के साथ बनाई। वो जब बेकार की बातें करते हैं, अरे कुछ नहीं है, ये स्मॉलर HUF बनती थी जब पार्टीशन अलाउड था, पार्टीशन अब अलाउड नहीं है, पार्शियल पार्टीशन में स्मॉलर HUF बना लेते थे, लेकिन अब स्मॉलर HUF भी नहीं बनती है। अगर आपके मेरी HUF है ना, तो जब भी पार्टीशन होगा, कंप्लीट पार्टीशन होगा अमंग्स ऑल द मेंबर्स, वो HUF खत्म हो जाएगी, वो HUF रहेगी नहीं। मैं अपनी HUF अलग बना सकता हूं, लेकिन यहां से नहीं बना सकता पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद HUF नहीं बनती, क्योंकि पार्टीशन कंप्लीट होना है, पर कैपिटा पर स्ट्राइप, ये मैं बताऊंगा, अभी तो शुरू किया है, पार्टीशन कराऊंगा, चिंता मत। अभी तो लोगों को मारूंगा भी कि एक मेंबर मर गया तो क्या होगा, दूसरा मर गया तो क्या होगा, अगर पार्टीशन हो तो कैसे होगी, ये तो अभी शुरू करा है, पहले ये तो सुन लीजिए। क्लियर है? फॉर्मेशन में सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। हाँ बोलिए। कैन ए विडो फॉर्म HUF? मैंने कहा लेडी HUF नहीं बनाती, लेकिन एडी कंटिन्यू कर सकती है, मैं बाद में बताता हूँ किस तरह। बेटी अगर है तो को पार्टनर है, तो बाप की HUF को कंटिन्यू कर सकती है, वो कर्ता बन सकती है, अभी बताऊंगा ना वो तो मैं। लेकिन मेल मेंबर HUF बनता है, फीमेल से HUF नहीं बनती है, लेकिन फीमेल जो डॉटर है वो उसमें को पार्टनर है, वो डॉटर को पार्टनर है। क्लियर हुआ पहले पॉइंट? बनेगी मेल से, क्योंकि फीमेल तो दूसरे घर चली जाती है, फीमेल तो नॉर्मली दूसरे घर चली जाती है ना, वो अपनी हस्बैंड की HUF की भी मेंबर हो जाती है और अपने फादर की HUF की को पार्टनर बनती है। ये राइट तो अभी आया है ना, अभी बताता हूं तुम्हें। क्लियर है सर? आई थिंक अब फॉर्मेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, हम लोग आगे हम फॉर्मेशन में इतना ही चाहते थे, अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। हम क्या कहने जा रहा हूं, HUF बना ली, क्यों बनाई सर? फायदा लेने के लिए। क्या फायदा है? सेपरेट एसएससी है, एक सेपरेट एसएससी आपने क्रिएट कर लिया HUF में, और सेपरेट एसएससी क्रिएट कर आपको मालूम है वही रेट ऑफ टैक्स है जो इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर का होता है। क्या? फर्स्ट 2,50,000 एग्जेम्प्ट, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। ये पुरानी स्कीम में। अगर न्यू रिजीम में जाएंगे तो आपको पता है फर्स्ट 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, next 2,50,000 10%, next 2,50,000 15%, next 2,50,000 20%, next 2,50,000 25%, above 15 lakh 30%। लेकिन नई रिजीम में आपको पता है अनम्यूट, मेरे को भी म्यूट कर देते हैं, बार बार मुझे अनम्यूट करना पड़ता है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया कि अब 2 तरीके हैं, इधर का 1,95,000 रुपए का फायदा है HUF बनाने का हर साल, अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से ज्यादा है। आप कहेंगे क्या फायदा है? सर आपका स्लैब 30% है सुमित जी, आपकी HUF बन गई तो पहला 2.5 लाख में आपने 30% बचा लिया। कितना बचाया? 75,000। एम आई राइट? दूसरे 2.5 लाख पे 25% बचा, क्योंकि 5% टैक्स देना है, तो 25% इंटू 2.5 लाख 62,500,
75 प्लस 62,500 137,500। फिर अगले 5 लाख पर 10% बचाया, 50,000 बच गया, 187,500। उसके ऊपर 4% एजुकेशन से जोड़ो। समझ आ गया सर? कितना फर्क बढ़ गया? 1,95,000 रुपए। उसके बाद तो कोई फर्क ही नहीं है। उसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। उसके बाद तो हाँ फर्क है सरचार्ज का। 50 लाख के ऊपर सरचार्ज लगता है, लेकिन इतनी बड़ी बातें मत करें, 10 से ऊपर की बातें करें तो रहेगा। तो फायदा हुआ 1,95,000 का। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं पुरानी रिजीम में, और नई रिजीम जाने में अलग है, तो ये फायदा है ना स्लैब रेट का। ये एक नया एसएससी बनाने का तरीका है, आप बना सकते हैं। तो एचयूएफ की इनकम कहां से आएगी? पहले तो कैपिटल आएगा, तभी तो इनकम आएगी। आपने कैपिटल ले लिया, अगर ज्यादा प्रॉपर्टी आ गई तो आप उसको रेंट, हाउस इमूवेबल प्रॉपर्टी आई, आपने रेंट दे दिया तो रेंट आ सकता। 4 हेड ऑफ इनकम होती है सबकी, इंडिविजुअल को छोड़कर। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है। यही चारों इनकम है, और तो और कोई इनकम तो है नहीं। अदर सोर्सेज में यही है कि आपके पास पैसा आया, आपने इंटरेस्ट पे लगा दिया, इंटरेस्ट आया तो अदर सोर्सेज। आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया एचयूएफ में, तो कर लीजिए प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई, प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, रेंट आ गया, वो भी इनकम है। तो 4 हेड्स ऑफ इनकम है। कोई एसेट बेच दी तो भी इनकम है। 4 हेड्स ऑफ इनकम हो सकती है। वो तो डिपेंड करेगा कॉर्पस क्या है। लेकिन याद करिए, एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। अगर आप करता है, सीए एचयूएफ का बिजनेस नहीं कर सकता, सीए नहीं बन सकता करता, ये बता दूं। सीए करता नहीं बन सकता। इनकम टैक्स कुछ नहीं कहता है, हिंदू लॉ कुछ नहीं कहता है, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकता है कि भैया आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। ना आप खुद बिजनेस कर सकते हो, ना आप पार्टनर बन सकते हो किसी बिजनेस में, ना ही आप करता हो सकते हो जो एचयूएफ बिजनेस करता है। आप नहीं हो सकते, आप करता नहीं हो सकते। अब आप बोलना मत कि हम तो कर रहे हैं, ये तो मुझे क्या लेना देना। जब कोई शिकायत करेगा तो मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि लोग, आप सुनिए सुमित जी, डेरिवेटिव का धंधा कर रहे हैं। डेरिवेटिव, कॉल एंड ऑप्शन, पता है ना, वो डेरिवेटिव होती है बिजनेस इनकम है, वो तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। अरे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, वो तो मान लिया कि आप कहोगे जी मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी कोई सेल परचेज का काम नहीं है, तो वो अलाउड है, वहां कैपिटल गेन है। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव हैं, वो तो लॉ कहता है डेरिवेटिव का तो होता ही बिजनेस इनकम है, और आप कैसे वो कर सकते हो? आप करता तो हो ही नहीं सकते। आप किसी और को करता बना सकते हो, लेकिन करता नहीं हो सकते आप। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी ए कर्ता ऑफ एचयूएफ हु इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस, हु इज कैरिंग ऑन ए बिजनेस, बट ही कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी। वो बार्बर शॉप की डायरेक्टर हो सकता है अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन कहीं बिजनेस में पार्टनर नहीं हो सकता, वो एचयूएफ में करता नहीं हो सकता, मेंबर हो सकता है। समझ में आ रहा है सर? करता चाहे कुछ भी नहीं करता, करता फिर भी करता होता है। सर करता रह करके किसी और मेंबर को ऑथराइज कर सकते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने अभी क्या बोला? करता चाहे कुछ भी नहीं करता, करता फिर भी करता होता है। अच्छा। ना ना ना, आप कर्ताशिप छोड़ दो, किसी और को कर्ता बना दो। ये कंपलसरी नहीं है कि एल्डेस्ट चाइल्ड कर्ता होता है। आप सारे डिसाइड करें तो किसी भी एडल्ट मेंबर को कर्ता बना सकते हैं। अपनी एचयूएफ में कोई भी एडल्ट मेंबर है अदर देन द वाइफ, आप उसको कर्ता बना सकते हैं। अडल्ट चाइल्ड, मेरी बात समझ में आ गया? आप उसको कर्ता बना सकते हैं, वाइफ कर्ता नहीं होती। वाइफ कैन नॉट बी, ओनली को पार्टनर कैन बी ए कर्ता। प्लीज नोट, को पार्टनर कैन बी ए कर्ता। Wife is not a co-partner, she is a member, she cannot be a co. Yes, this wife is a daughter to her father's HUF, वो वहां बन सकती है, अभी थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन wife cannot be a कर्ता। तो आप अगर आपकी HUF है और वो बिजनेस कर रही है, तो चुप करके किसी अडल्ट मेंबर को HUF कर्ता बना दो। लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी को ऑथराइज कर देता हूं, लेकिन बनूंगा तो मैं ही।
करता कुछ, जो कुछ भी नहीं करता करता फिर भी करता होता है। इसलिए बिल्कुल कोशिश मत करना, बिजनेस मत करो, बाकी जो मर्जी करो। आप रेंटल इनकम कमाओ, आप इंटरेस्ट इनकम कमाओ, आप कैपिटल गेन कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूट डिसअलाउ कर रहा है, कोई या एचयूएफ का लॉ थोड़ी कर रहा है, कोई इनकम टैक्स का लॉ थोड़ी कर रहा है। आपका इंस्टीट्यूट डिसअलाउ करता है कि आपके वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, फिर जो मर्जी करिए, कौन स्टॉप करता है? फिर जो, अरे यहाँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मैंने देखे करते हैं बिजनेस, वो कॉल पुट एंड कॉल में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरे भाई साहब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे बिजनेस कर सकता है? लेकिन वो भी करे जा रहे हैं, इनकम कमाए जा रहे हैं। अरे मैंने कहा फंस जाओगे, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, आप कर्ता नहीं बन सकते, आप किसी और को कर्ता बना दो, लेकिन कर्ता नहीं हो सकते क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। अरे कॉल ऑप्शन, कॉल और ये जो पुट एंड कॉल की जो भी है, जो डेरिवेटिव, ये बिजनेस होता है। आपको पता है, सेक्शन 43(5) में लिख दिया ये बिजनेस है, तो आप नहीं कर सकते। अब गलत काम कर रहे हैं तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता सर, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मत करना। अगर आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप कर रहे हैं तो, लेकिन आगे से तो ठीक कर लो यार, देर क्या लगती है कर्ता को चेंज करने में। एक आप आपस में डिसाइड करना है और एक बैंक को दे दो चिट्ठी और बस हो गया, कर्ता बदल गया। और ज्यादा इनकम टैक्स में भी करवा देना कर्ता का नाम चेंज, बाकी तो क्या होता है, रिटर्न भरते हुए चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट ये? अरे आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर। क्या एचयूएफ प्रोफेशन कर सकता है? क्या एचयूएफ प्रोफेशन कर सकता है? जी नहीं, प्रोफेशन नहीं कर सकता। प्रोफेशन तो प्रोफेशनल करता है, एचयूएफ कहां से प्रोफेशनल हो गया? इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है, जो अटेनमेंट ऑफ सर्टन वो है, या पार्टनरशिप हो जाती है या एलएलपी। कंपनी थोड़ी प्रोफेशनल होती है, कंपनी भी प्रोफेशनल नहीं होती, प्रोफेशनल इंडिविजुअल होता है या पार्टनरशिप होती है। एचयूएफ प्रोफेशन नहीं कर सकता। एचयूएफ, क्या एचयूएफ कमीशन ले सकता है सुमित जी? 31 मार्च वाली कमीशन नहीं ले सकता। समझ में आ गया ना? 31 मार्च का मतलब समझ गया ना? वो कमीशन नहीं ले सकता। आप बिजनेस करिए, आपको कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें कमीशन एजेंट हैं और आपको कमीशन मिलती है, वो अलग बात, वो कमीशन थोड़ी है, वो तो बिजनेस है ना, कि आपको टर्नओवर पे कमीशन मिलती है, लेकिन वो वाली नहीं 31 मार्च वाली। समझ में आ गया ना? क्या जी हम तो बीच में कमीशन लेते हैं, हमने तो प्रॉपर्टी बिजनेस एचयूएफ में कर रखा है और कमीशन आती है किराए के ऊपर, वो जो हम दिलवा देते हैं मकान। अरे बिल्कुल मत करना, नॉट अलाउड है। वो तो कर्ता की इनकम में आ जाएगा, शो कॉज आ जाएगा, व्हाई दिस इनकम बी नॉट क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द कर्ता, ये तो शो कॉज आता है। बिल्कुल नहीं है, एचयूएफ कमीशन नहीं ले सकता। एचयूएफ वो कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कैपिटल है तो बिजनेस कर सकता है, पैसा लगाए तो बिजनेस। हाँ, एचयूएफ लोन ले सकता है और एचयूएफ से आप भी लोन ले सकते हैं, एचयूएफ को लोन दे भी सकते हैं, एचयूएफ से लोन ले भी सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन एचयूएफ से गिफ्ट नहीं ले सकते। गिफ्ट मैंने बोल दिया पार्शियल पार्टीशन होता है। मैं आपको बताऊं, यहां तक क्लियर हुआ तो आगे चलूं कि एचयूएफ की इनकम कौन से हेड से हो सकती है? 4 हेड से हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्स। मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन नाम है, उस प्रोफेशन को पकड़ मत लेना, वो तो प्रॉफिट और गेन अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन नाम है। वैसे बिजनेस से हो सकता है, प्रोफेशन से नहीं हो सकता, प्रोफेशन से। अब कल कहोगे एचयूएफ कोई किताब लिख सकता है सर? नो। कहां से लिखेगा? वो तो कर्ता लिखेगा या कोई मेंबर लिखेगा, तो प्रोफेशन नहीं कर सकता, एचयूएफ बिजनेस कर सकता है। क्लियर हुआ? और आप बिजनेस कर। अब आइए एचयूएफ में अब मैंने कहा डॉटर, अब जरा सुनिए 9/9/2005 को क्या चेंज आई है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 9/9/2005 ये डेट है, और 9/9/2005 को अमेंडमेंट हुई थी। उसमें लिखा था डॉटर ऑफ ए को पार्सनर, डॉटर ऑफ ए को पार्सनर शेल by birth become the co-partner in the same manner as that of a son, and she will have a same right as that of a son. समझ रहे मैंने क्या कहा? डॉटर ऑफ ए को-पार्टनर। मेरे कैच करो वर्ड सुमित जी, मैंने डॉटर ऑफ ए कर्ता नहीं कहा है,
मैंने डॉटर ऑफ कर्ता नहीं कहा है, डॉटर ऑफ ए को पार्सनर। अब को पार्सनर कौन है? सुनिए, फादर ने एचयूएफ बनाई, पहली एचयूएफ की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एचयूएफ, उसके नीचे वाली अलग करूंगा। फादर ने एचयूएफ बनाई, कहां से बनाई होगी? या तो गिफ्ट से बनाई होगी, या विल से बनाई होगी, यही बनेगी ना, या 1956 से पहले की होगी, तो वहां बन जाती थी 1956 से पहले बनी हुई है फादर की एचयूएफ। सुन लीजिए जरा। यस सर। जब भी बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, बाय बर्थ सेम राइट है, बेटे का भी और बेटी का भी। पहले सिर्फ बेटे का होता था, बेटी का नहीं होता था। पहले अनमैरिड डॉटर मेंबर होती थी, लेकिन को पार्सनर नहीं होती थी। अब डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शी हैज ए सेम राइट एज दैट ऑफ ए सन, एंड शी बिकम द member. She has a right in the co-parsonage property. She has a right in the co-parsonage property of her father. Co-parsonage property में उसका पूरा हक है। समझ में आ रहा है? She becomes a co-parsoner. So बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को वही राइट है, सन या डॉटर। पहला समझ में आ गया। 9/9/2005 के बाद किसी ने पूछा कि पहले जजमेंट आई थी फूलपति, प्रकाश वर्सेस फूलपति सुप्रीम कोर्ट की, तो वो जजमेंट में पता क्या सुप्रीम कोर्ट की आया था सुमित जी, कि 9/9/2005 में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फादर अलाइव होना चाहिए। जिसकी मतलब जिसकी एचयूएफ है वो कर्ता अलाइव होना चाहिए, फादर अलाइव। और बेटी 9/9/2005 से पहले की है या 9/9/2005 के बाद की है, उसको शेयर मिलेगा, लेकिन 9/9/2005 में फादर अलाइव होना चाहिए। और बेटी शादी है ना मैरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए, वो जजमेंट भी ओवर रूल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब एक और जजमेंट आ गई, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, और अरुण मिश्रा जी ने डाली है। और क्या जजमेंट दी है, जो मैं बोला करता था वही नाम बोल दिया। समझिए, आपने सुना होगा मेरे लेक्चर में, सन इज ए सन टिल ही गेट्स वाइफ, ए डॉटर रिमेन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। ये बोला था मैंने सर, कि जो बेटा है ना तभी तक बेटा है जब तक बीवी नहीं आई उसकी। जिस दिन उसकी बीवी आ जाती है तो बेटा नहीं रहता, बेटी हमेशा बेटी रहती है। डॉटर रिमेन्स डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। बेटी चाहे 50 की हो जाए, 60 की हो जाए, 70 की हो जाए, शादीशुदा हो, बच्चों वाली हो, ग्रैंड चिल्ड्रन वाली हो, लेकिन अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, और बाप का ज्यादा रखती है। ये भी आपको पता होगा। ये तो आपको नजर भी आ रहा है कि बेटी बाप को कभी नहीं बोलती, चाहे बाप गरीब हो चाहे बाप अमीर हो। लेकिन बेटा तो, अगर आपने मोती दान किए हैं तो बेटा हो सकता है आपको पूछता हो। मेरे को कोई मना नहीं है, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, कभी आप सोचो, लेकिन जमाना बदल गया है। या तो बाप की प्रॉपर्टी में बाप को निकाल देते हैं और बेटा उसके ऊपर हक ले लेता है। ऐसे ऐसे केस सुने हैं ना भैया। तो मैंने ये कहा, बेटा जब तक बीवी नहीं आई तब तक बेटा तो बहुत अच्छा लगता है। जब बीवी आ जाए तो आपका मोती दान किए अगर बेटा आपको पूछता है, नहीं तो आप ही को बेटे से पूछना पड़ता है। आपका बेटा अगर आपके साथ नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है, तो आप ही उसको फोन करके पूछोगे, बेटा ठीक है ना, कोई तबीयत ठीक है ना, कोई कोरोना की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बच्चे तेरे ठीक है ना। वो कभी फोन करके पूछता है बाप को, पिताजी आप ठीक हो? बेटी पूछती है, बेटी पूछती है। ये देखिए विडंबना, बेटी अपने माँ बाप को पूछती है लेकिन हस्बैंड के माँ बाप को नहीं पूछती। पता नहीं क्या विडंबना है, सास के साथ उसकी क्या लड़ाई है, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आई। वही बहू, कभी सास भी कभी बहू थी, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। वही बेटी अपने माँ बाप का कितना ख्याल रखती है, और वही बेटी अपनी जो हस्बैंड की माँ है उससे तो कहती है दूर दूर रहो तो अच्छा होगा। ये क्या है यार, क्या समझ में नहीं आ रही। मेरी बेटी भी जब मुझे फोन करती है तो मैं कहती हूँ, मुझे रोज फोन करती है, अपने जरा नीचे अपने माँ बाप से भी, अपने हस्बैंड के माँ से भी पूछ ले कि सास जी आप सासू जी आप ठीक है? कहते हैं उसका नाम मदर इन लॉ है, वो इन लॉ की मदर है, वो वैसे मदर इन लॉ। अरे यार ये क्या विडंबना है।
हम तो बच्चों को समझाते रहते हैं कि बेटा जहां जाओ वो तुम्हारा घर वो है, जो आप आदतें डालोगे, जो तुम्हारे बच्चे देखेंगे वही तो आगे करेंगे। आगे जाकर तुम कितनी अपनी सास का ध्यान रखते हो, वही तुम्हारे बच्चे भी उसी तरह करेंगे। लेकिन किसी के समझ में नहीं आती। ये कौन सी विडंबना है, ये कौन सा राह है, और ये वर्ल्ड ओवर है। ये हमारे यहाँ नहीं कि सास से नहीं बनती, बाहर भी नहीं बनती है, लेकिन वो तो शुरू से अलग हो जाते हैं ना। हमारे यहाँ तो कहते हैं चलो चलो, नहीं 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 नहीं, दिखावा करना है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सुमित जी, बुरा ना मानना, कि अपने बच्चों को जो भी देना है दो होश आवाज में, लेकिन उतना ही देना जितना जरूरत है, और पर्टिकुलरली बेटे को उतना ही देना जितना जरूरत है। इससे ज्यादा गिफ्ट दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा तो फिर ओल्ड एज होम में अपना रूम बुक करा लेना, ओल्ड एज होम में चले जाना। आपका मुकद्दर अच्छा है तो बेटा पूछेगा, अगर मुकद्दर अच्छा नहीं है, मोती दान नहीं किए, तो भैया भैया फिर तो आप गए। हमें आदत है देने की, इस तरह होना चाहिए, यूं यूं हाथ नहीं होना चाहिए। यूं हाथ हुआ तो आप गए। कभी भी बेटे को पूरी चीज मत दे देना, लालच देते रहना, तेरे लिए तो कमा रहा हूं, और किसके लिए कमा रहा हूं, तेरे को ही दे के जाना है। मैंने कहा साथ में तो लेके नहीं जाना। बहू भी सेवा करेगी और बेटा भी सेवा करेगा। जिस दिन दे दिया उस दिन आपका काम खत्म हो गया। फिर तो आपके मोती दान किए तो बच्चा पूछ लेगा, नहीं तो पूछता ही नहीं है बेटा। आजकल क्या जमाना आ गया। गौतम सिंघानिया का केस तो सुना ही आपने, मधुपत सिंघानिया, गौतम सिंघानिया और विजयपत सिंघानिया। क्या किया, बेटे को 1000 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए गौतम सिंघानिया के बाप ने, विजयपत सिंघानिया ने। कहा क्या, ये 22 मंजिली बिल्डिंग बन रही है, एक फ्लैट दे देना और मुझे एक गाड़ी और ड्राइवर दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी खाने पीने के लिए मेरे पास पैसे हैं। 1000 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए। और आपने सुना रेमंड वाली तो इशू है कि बाप को उसने बाद में मकान भी नहीं दिया और ड्राइवर भी खींच लिया। ये है जमाना आजकल का। मेरे को कहोगे, मुझे कोई कहता है आप भुक्तभोगी लगते हैं, बड़ा आपको दुख होता है ये बातें कर रहे हो। जरूर आपके साथ ये हुआ है। बेजा जी मेरे साथ तो हुआ ही नहीं, मेरा तो बेटा ही नहीं है, तो मुझे किस बात की चिंता। मेरी तो बेटियां हैं, मुझे तो सब पूछते हैं। मेरे को छोड़ दो, आप अपनी बात करो। जिसका बेटा है तो कहेगा भुक्तभोगी। मैं कहा मेरे पास तो रोज आते हैं क्लाइंट, रोते हैं आके कि यार ये बेटा पूछता ही नहीं है। आजकल का जमाना क्या आ गया है, हम तो हाथ जोड़ के ही खड़े रहते हैं। तो मैंने कहा फिर देते क्यों हो, उतना ही दो ना जितना जरूरत है। तो सुमित जी क्या हुआ, मैं एक लेक्चर दे रहा था लुधियाना में, तो वहां पर मिस्टर अशोक भंडारी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका बेटा रचित भंडारी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वहां बैठा हुआ था, हम लेक्चर देते रहे, बहुत लोग थे। मैंने कहा बेटे को उतना जितना जितना जरूरत है अपने लिए रख लेना, और इतना रख लेना अपना और अपने बीवी के लिए, ताकि बाद में मांगना ना पड़े, और मांगा तो गए। मैंने ये कहा। अगले दिन फोन आ गया, सर मरवा दिया आपने। मैं क्या, कहता फादर से 25 लाख रुपए मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया। कहता मैं नहीं दूंगा, आहूजा साहब कह गए मत देना। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था अपने लिए इतना रख लेना ताकि मांगना ना पड़े, किसी की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि पैसा आपने कमाया है, आपने मेहनत करके कमाया और बच्चों को दे दिया, और बच्चे ना पूछे तो हमारा क्या हाल होगा। ये आजकल तो बेटियां भी कई बार नहीं पूछती, लेकिन नॉर्मली सिस्टम ये है बेटियां पूछती हैं। बेटों का क्या है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमने तो अपनी माँ बाप की सेवा करी है। आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं, छोटे जो यंग सुन रहे हैं, अरे माँ बाप नंबर 1 होते हैं, माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं। माँ बाप आप बदल नहीं सकते। अरे भगवान का नंबर 3 है। आप कहेंगे ये कैसे, माँ बाप का नंबर 1 है, नंबर 2 गुरु का है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए। नंबर 2 है, और भगवान का नंबर 3 का नाम है। 3 नंबर है भगवान, 2 नंबर तो वो है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अरे गणेश जी को देख लो, जब ब्रह्मांड घूमने जाना था, वो गणेश जी तो अपने माँ बाप के ही चक्कर लगा के जीत गए, और सारी उम्र में उसकी पूजा होती है, और वो बेचारा वो जो कार्तिकेय सारे वो ब्रह्मांड घूम के आया, उसको कुछ नहीं मिला। तो ये जो है ना, ये माँ बाप जो है ना, इनकी इज्जत करना सीखिए। मैं तो आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, यंग बच्चों को, आपको नहीं कह रहा, आप लोग तो करते हो। आपकी उम्र जो 50 साल से ऊपर है वो भी माँ बाप को अभी देखते हैं।
लेकिन 50 से नीचे वालों का तो खतरा ही शुरू हो गया, खतरे की घंटी हो गई। तो भैया मैं बता रहा हूं, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप नहीं बदल सकते और कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती। माँ बाप पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे, वो आपको नहीं पता कितना सेक्रीफाइस वो करते हैं आपके लिए। आपको ये भूल जाना कि माँ बाप कुछ नहीं है। अरे जिंदगी में माँ बाप की कब दुआ मिलती है। और एक चीज बता दूं सुमित जी, माँ हमेशा गरीब बेटे को प्यार करती है, गरीब को, और बाप हमेशा अमीर बच्चे को पाता है। जो उसका नाम रोशन करता है, बाप तो उसे कहता है ये मेरा सपूत है, ये साला तो कपूत है, ये तो कुछ नहीं करता। बाप में एक और चीज है, बाप हमेशा उस आदमी की काम उसको ही ज्यादा करेगा जिसके जो ज्यादा कमाऊ पता है, जो ज्यादा नाम रोशन करता है बाप का, वो चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। ये गौतम सिंघानिया छोटा ही तो था, लेकिन उसका नाम ज्यादा था मधुपत से। लेकिन माँ जो है ना, वो गरीब बेटे को ज्यादा प्यार करती है, वहां से निकाल बड़े अमीर से लेकर गरीब को देती है। ये माँ का प्यार है, ये बदल नहीं सकता। ये क्या बना हुआ है सिस्टम में, प्रकृति ने क्या बनाया मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन माँ तुम देख लेना, अपने घरों में देख लेना, माँ किसको ज्यादा प्यार करती है, चाहे बड़ा हो बच्चा हो या छोटा हो। लेकिन अगर वो गरीब है एज कंपेयर टू दी दूसरा भाई या बेटा, तो वो ज्यादा उसको प्यार करती है, उसी के साथ रहना पसंद करती है। चाहे कुछ खाने को मिले ना मिले, वहीं रहेगी और अपने बड़े से जाके वो ले आएगी दूसरे बेटे से और इसको देगी। ये माँ का प्यार है, ये बदल नहीं सकता, बुरा मानना नहीं चाहिए। और बाप का प्यार, बाप तो उसी का नाम कहेगा जो उसका नाम रोशन करेगा। लेकिन अब बेटी का पूरा हक है, पूरा हक है। द डे शी इज बोर्न इन द फैमिली शी हैज ए फुल राइट। अब सुनो, बेटी के बेटों का भी हक हो गया, बेटी के बेटी का भी हक हो गया, क्योंकि डॉटर ऑफ ए को पार्सनर। को पार्सनर कौन है? बेटी भी तो को पार्सनर बन गई, उसकी डॉटर वो भी को, उसका बेटा भी बन गया। पहले दादा नाना की प्रॉपर्टी में बेटी का हक तो था, बेटी के बच्चों का नहीं था। अब तो सबका कर दिया एचयूएफ में। मैं एचयूएफ की बात कर रहा हूं। बेटी के बच्चे भी उतना ही हक है जितना बेटे के बच्चों का, 4 जनरेशन तक। लेकिन बेटी एचयूएफ नहीं बना सकती। लेकिन बाप के मरने के बाद सुमित जी कौन बनेगा कर्ता? बाप पहली एचयूएफ बनाई, कर्ता बन गया। अब बाप के मरने के बाद किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता। जिस बाप ने एचयूएफ बनाई है वो मर गया, लेकिन एचयूएफ बंद नहीं होती, लॉन्ग लिव द कर्ता। कौन बनेगा कर्ता बताएंगे? हाँ, आपने सुना हुआ है ना, इसलिए मेरा लेक्चर। नहीं तो कहते एल्डेस्ट सन, जमाने चले गए एल्डेस्ट सन, अब एल्डेस्ट चाइल्ड। एल्डेस्ट चाइल्ड अगर बेटी है, शादीशुदा भी हो, लेकिन वो भी कर्ता बन सकती है अपने बाप की एचयूएफ की। कर्ता बेटी बाई राइट है उसका, एल्डेस्ट चाइल्ड कन्वेंशन से है। ये बाई कन्वेंशन है कि अगर बेटी बड़ी है तो बेटी बन जाएगी कर्ता, चाहे शादीशुदा हो। वो अलग बात है, बेटी नहीं बनना चाहती तो कोई और बन जाए, वो अलग बात है। आपस में डिसाइड करके कोई भी कर्ता हो सकता है, लेकिन एल्डेस्ट चाइल्ड कर्ता होती है। अरे आपको मैं केस सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। ये केस बहुत फेमस है, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता। जरा सुनिए, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, ये सुन लेना जरा क्या है। देखिए, एक फादर की एचयूएफ थी, उसका बेटे थे, 4 बेटे थे। उसकी बेटी नहीं थी, चलिए 4 बेटे थे। फादर की डेथ हो गई तो एक एल्डेस्ट चाइल्ड बेटा था, वो बन गया कर्ता। बन गया जी, समझ आ गया? अब चारों की डेथ हो गई। अब नंबर आया कौन कर्ता बने। ग्रैंड चाइल्ड ही तो बनेगा ना, ग्रैंड चाइल्ड हो ना, कौन सा? 4 बेटे हैं, ए बी सी डी। अब ए का जो बेटी थी वो छोटी थी और बी का बेटा बड़ा था और सी की बेटी बड़ी थी। पता कौन बना? एल्डेस्ट चाइल्ड। एल्डेस्ट चाइल्ड। चारों मर गए तो एल्डेस्ट चाइल्ड। ग्रैंड डॉटर बनी, ग्रैंड सन नहीं बना। वो कहता मैं बनूंगा, कहता तू कैसे बन सकता, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं। ये मैंने आपको केस बताया जो आपको बताना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता। एल्डेस्ट चाइल्ड बनेगा, एल्डेस्ट चाइल्ड फीमेल है
या मेल? एल्डेस्ट, हाँ, सारे डिसाइड कर ले तो कोई भी बन सकता है, सारे डिसाइड करें तो कोई भी बन सकता है एडल्ट मेंबर। लेकिन अदरवाइज बेटी चाहे शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी को पूरा हक है जैसे बेटे को हक है। और जब भी इसमें पार्टीशन होगा सुमित जी, इक्वल राइट है बेटे का, बेटी का, जितना बेटे को उतना बेटी को मिलेगा। तो मुझे एक सवाल ने पूछने लग गया, सर मर गए हम तो। मैंने क्या हुआ? सर हमारे फादर की डेथ हो गई, हम पार्टीशन हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी बहन शेयर लेके जाएगी? वो तो मैरिड है और उसको मैरिज हुए 40 साल हो गए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, उसको शेयर मिलेगा। कहते सर ये तो बहुत बुरी बात है, वो लेके चलेगी, हमने उसकी शादी में खर्च किया था। मैं कहा तो क्या होगा, तेरी शादी में भी तो खर्च किया था बाप ने, ऐसे क्या हो गया? नहीं सर वो शेयर लेके जाएगी। मैं कहा हाँ लेके जाएगी। मैंने कहा तू रोता क्यों है, तेरी बीवी लेके भी तो आएगी। कहता सर सुन तो लो, बीवी एक है, बहनें दो हैं। मैंने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, दो बहनें तो दो शेयर लेके जाएगी, एक बहन है तो एक शेयर लेके जाएगी, शादी ये एक मेरे और हाथ में नहीं है। जितनी बहनें उसका पूरा हक है। अब बहन और भाई में कोई फर्क नहीं है, बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है। पहले एचयूएम में फर्क था, आपने जो सेक्शन 8 सुना वहां भी बेटी का पूरा हक था, वो सेक्शन 8 में, लेकिन यहाँ तो एचयूएम में भी हो गया। मेरे बेटी का पूरा हक है, मेरे बेटे जितना बेटे का हक है। सेम राइट that of a son, she has a same right that of a son, she also become a member of a co-parcel, a post-parcel property, उतना ही शेयर मिलेगा। समझ में आ गया? अगर हम पार्टीशन करें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अगर तो डिसाइड कर ले सारे मिलकर तो आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, अनइवन। लेकिन अगर डिसाइड नहीं करा तो पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पर ब्रांच, पर कैपिटा, पर स्ट्राइप, पर स्ट्राइप, पर कैपिटा। आप कहेंगे ये क्या बीमारी है, पर स्ट्राइप पर कैपिटा? पहले फादर है और जिंदा है, उसकी वाइफ भी जिंदा है जिसका एचयूएफ करता है, और उसके दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, लेटेस्ट से। पता क्या होगा? पार्टीशन हुआ तो पहले पर स्ट्राइप होगा, एक शेयर फादर को मिल जाएगा, एक शेयर वाइफ को मिल जाएगा जिसका एचयूएफ थी, एक वाइफ को मिल जाएगा, एक बेटे को मिलेगा, एक बेटी को मिलेगा। 1/4 1/4 1/4 1/4। अगर तीन बच्चे होते तो फिर 1/5 फादर, 1/5 मदर, 1/5 1/5 1/5। अगर मदर जिंदा नहीं है तो जो जिंदा है फादर एंड 3 बच्चे, तो 4। ठीक है, पहले क्लियर समझिए। इसे कहते हैं पर स्ट्राइप। अब बेटा, क्योंकि अब कंप्लीट पार्टीशन है, पार्शल नहीं है, बेटा अपने बच्चों में बांटेगा। अपने बच्चों में मतलब अपने बेटे और बेटी में देगा, क्योंकि बेटी भी तो को पार्टनर है। समझ आ गया? अब बेटे का बेटा अपने बच्चों में बांटेगा, वो अपने बच्चों में बांटेगी, बेटी भी अपने, और वो 4 जनरेशन तक बढ़ जाएगी। कंप्लीट पार्टीशन, उसे कहते हैं पर कैपिटा। मेरे बेटे को कितना मिला? 1/4। वो 1/4 उसके 2 बच्चे थे, तो 1/3 ऑफ 1/4 तो उसका हो गया, 1/12। 1/12 एक बच्चे बेटे का हो गया और 1/12 बेटी का हो गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या कह रहा हूं? उसका 1/4 शेयर था, 2 बच्चे तो 1/3 1/3 हो जाएगा ना, तीनों का 1/4। और वो अपने 1/12 लेकर अपने बच्चों में बांटेगा, और बेटी 1/12 लेकर अपने बच्चों में बांटेगी। समझ में आ रहा है सर? उसे ऊपर कहते हैं पर ब्रांच, पर स्ट्राइप। पहले फर्स्ट जनरेशन में बटेगा, फिर अपनी अपनी जनरेशनों में नीचे तक जाता रहेगा। वो पर कैपिटा है, इक्वल, लेकिन अपने में भी इक्वल है। मेरे फादर ने पार्टीशन किया तो फादर जिंदा है, फादर जिंदा नहीं था, अब पार्टीशन हुआ, मदर जिंदा है तो मदर को शेयर मिलेगा और बेटा और बेटी को मिलेगा। फादर जिंदा होता तो फादर को भी मिलता। मदर जिंदा है और 2 भाई 1 बहन है, तो 1/4 मदर, 1/4 1 ब्रदर, 1/4 1/4। अगर फादर जिंदा होता तो 1/5 1/5 हो जाता। सपोज मदर जिंदा नहीं है तो बहू को नहीं मिलेगा। सर मदर जिंदा नहीं है, मैं कर्ता बन गया, मेरे फादर की एचयूएफ है, मैं कर्ता बन गया। सुनिए समीर जी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ का कोई हक नहीं है उसमें। मेरी वाइफ कर्ता की वाइफ है, लेकिन वो कर्ता कौन सा है? वो तो फादर की बात बनने के बाद कर्ता बना है, वो ओरिजिनल कर्ता नहीं है। ओरिजिनल कर्ता की वाइफ का हक है
या मेरी माँ का हक है, मेरी बीवी का हक नहीं है। मुझे मिलना है शेयर, लेकिन अगर मेरी एचयूएफ होती, मैंने खुद बनाई होती, तो मेरी वाइफ को उतना ही शेयर मिलता जितना मुझे मिलता, जितना मेरे बेटे को मिलता, जितना मेरी बेटियों को मिलता। ये क्लियर हुआ? तो कभी मत सोचना कि कर्ता की वाइफ को हमेशा शेयर मिलता है, ये गलत है। कौन से कर्ता की वाइफ को मिलता है? जो फर्स्ट टाइम एचयूएफ बनी, जिसकी, समझ आ रहा है, जिसकी फर्स्ट टाइम एचयूएफ बनी, उसकी वाइफ को शेयर मिलता है, अगर वो जिंदा है। अगर मेरी फादर की, सुनिए, मैं अपनी फादर की एचयूएफ का को पार्टनर हूं बाय बर्थ। मैं अपनी एचयूएफ बना सकता हूं, मेरे पास आई। मेरा बेटा अपनी एचयूएफ बना सकता है, जैसे मैंने बताया था फॉर्मेशन, मेरे बेटे का बेटा भी बना सकता है अगर शादीशुदा है और चाइल्ड है। तो एचयूएफ में मैं एचयूएफ, अपनी एचयूएफ का करता हो सकता हूं। सुनिए, मैं अपनी फादर की एचयूएफ का भी करता हो सकता हूं, मैं अपनी ग्रैंडफादर की एचयूएफ का भी करता हो सकता हूं। आई कैन बी ए करता मोर देन वन एचयूएफ। मैं अपनी एचयूएफ का करता तो हुई हूं, लेकिन मैं अपने फादर की एचयूएफ का भी करता हो सकता हूं अगर मैं एल्डेस्ट चाइल्ड था और मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं अपने ग्रैंडफादर की एचयूएफ का भी करता हो सकता हूं कि मैं एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड था और बाकी कोई नहीं है। समझ आ रहा है? I can be a karta of my, I can be a karta more than one HUF. One, I can be a karta of my HUF. I can be a karta of my father's HUF. I can be a karta of my grandfather's HUF. I can be a karta of my great-grandfather's HUF. But I cannot be a karta of my son's HUF. सन की HUF में कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको बताया था या तो हस्बैंड वाइफ की बनती है या लीनियर डिसेंडेंट की बनती है। आप फादर को लेकर HUF नहीं बना सकते सुमित जी, आप फादर को लेके एचयूएफ नहीं बना सकते, आपने बच्चों के साथ बनाना। फादर आपके साथ बनाएगा, फादर आपके साथ बनाएगा, आप अपने बच्चों के साथ बनाएंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों के साथ बना सकते, अलग अलग बना सकते। आई कैन बी ए को पार्सल ऑफ माई एचयूएफ, आई कैन बी ए को पार्सल माई फादर्स एचयूएफ इफ इट कंटिन्यूज, पार्टीशन नहीं हुआ। I can be a co-parcel of my grandfather HUF. I can be a co-parcel of my great-grandfather. मैंने कहा 4 जनरेशन का मैं करता हो सकता हूं, 4 जनरेशन का मैं मेंबर भी हो सकता हूं, co-parcel भी। सो HUF कभी मरती नहीं है, HUF तो जिंदा रहती है, सिर्फ करता मरता है। करता मरता है, दूसरा करता बन जाता है, और HUF चलती रहती है जब तक आप पार्टीशन ना कर लो या जब एक ही मेंबर रह जाए, एक ही को पार्सल रह गया, बाकी कुछ रहा ही नहीं। क्या बीवी को पार्सल हो सकती है? जी नहीं। तो आपने, किसी ने कहा सर सपोज बेटे की, सपोज कर्ता की डेथ हो गई, जो जिसने एचयूएफ बनाई थी, बीवी और 2 माइनर बच्चे हैं, तो कर्ता कौन बनेगा? बीवी और 2, क्या एचयूएफ खत्म हो जाएगी? जी नहीं। बीवी बनेगी मैनेजर टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कर्ता टिल वन ऑफ द चाइल्ड गेट्स मेजॉरिटी। बीवी कभी भी करता नहीं होती, बेटी हो सकती है, बीवी कभी भी करता नहीं होती। शी कैन बी अ मैनेजर टू लुक आफ्टर द अफेयर ऑफ द HUF टिल अ चाइल्ड गेट्स मेजॉरिटी। क्लियर हुआ? अब किसी ने पूछा दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई और दोनों चाइल्ड माइनर हैं, दोनों चिल्ड्रन है, दोनों माइनर है, तो क्या होगा? गार्डियन अपॉइंट कर देगा कोर्ट और वो करता हो जाए जब तक वो मेजर नहीं होता। गार्डियन अपॉइंट कर देगा, वो करता हो जाएगा, HUF चल सकती है, मैं मना नहीं करता। वो करता रहेगा, मैनेजर रहेगा। हाँ, वो गार्डियन है ना, गार्डियन अपॉइंट किसने किया? कोर्ट ने। टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ HUF। समझ में आया? वो करता थोड़ी है, गार्डियन है, लेकिन वो गार्ड कर रहा है HUF का इंटरेस्ट। क्लियर है? ये भी क्लियर है? सो आई कैन बी ए करता, मेरी HUF का तो मैं ही करता होता हूं अगर मैंने खुद बनाई है। वो मैं चाहूं तो अपने बेटे को बना सकता हूं, बेटी को बना सकता हूं, लेकिन मैं ही होता। लेकिन मेरे मरने के बाद एल्डेस्ट चाइल्ड करता बनेगा मेरी HUF का, एल्डेस्ट चाइल्ड, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, ये मैंने बता दिया। जो भी उसमें एल्डेस्ट है, कन्वेंशन ये है, बाकी तो आप सारे मिलके डिसाइड कर ले तो कुछ भी कर सकते। और मैंने कहा पार्टीशन करना है तो कोई भी को पार्टनर पार्टीशन करवा सकता है। एक बार लिख दे कि हम आई वांट पार्टीशन, समझाते रहो उसको,
नहीं तो पार्टीशन होगा, और पार्टीशन होते ही कंप्लीट पार्टीशन करना पड़ेगा। पार्शियल पार्टीशन हिंदू लॉ अलाउ करता है। सुमित जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, हिंदू लॉ पार्शियल पार्टीशन अलाउ करता है, लेकिन इनकम टैक्स 31 दिसंबर के बाद नहीं करता। कहता क्या है इनकम टैक्स, कि तुमने पार्शियल पार्टीशन कर लिया, कर लो, लेकिन जो आपने पार्टीशन करके प्रॉपर्टी दी उससे जो इनकम आएगी वो एचयूएफ को ही लगेगी टैक्स, चाहे कुछ कर लो, जब तक कंप्लीट पार्टीशन नहीं होगा। हो सकता है मैंने पार्टीशन, एक बेटे को एक प्रॉपर्टी दे दी या कुछ एसेट दे दी, उससे उसको इनकम आ रही है, सपोज रेंट आ रहा है, तो वो रेंट एचयूएफ के अंदर ऐड होगा, उसके नहीं मानी जाएगी, वो एचयूएफ में होगा, क्योंकि पार्शियल पार्टीशन इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। हाँ, इनकम टैक्स ये कहता है कि हमें तो टैक्स लेना है, बाकी आप जो मर्जी करो। अब मेरे से कोई पूछता, आपने पूछा था कि क्या एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है? जी नहीं। जो करंट इनकम है ना सर, करंट इनकम, हर साल की इनकम, वो एचयूएफ बांट सकता है आपस में, क्योंकि सेक्शन 10(2) में लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(2) देखा आपने सुमित जी? उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरा माफ होता है एचयूएफ का। तो करंट इनकम को आप जब मर्जी बांट लो। आप कहेंगे किस रेशो में बांटना है? या तो वही इक्वल, अगर इक्वल नहीं वही पर कैपिटा पर स्ट्राइप, अगर इक्वल नहीं करना तो अनइवन कर सकते हैं, सारे मेंबर डिसाइड कर ले, आपस में एक एग्रीमेंट करके लिख ले, सारा एक को दे दो, ले ले, कोई मना नहीं है। हमें तो टैक्स मिल गया है, बाकी तो आपका माल है, लड़ो मरो, अगर आपस में डिसाइड कर लिया तो एक को दे दो। लेकिन करंट इनकम, एक बार इनकम एक्यूमुलेट हो गई तो फिर तो पार्शियल पार्टीशन माना जाएगा। अगर 2 साल बाद करोगे तो फिर नहीं लो सकते। आज की इनकम, इस साल की इनकम इसी साल बांट लो। जैसे प्रॉफिट नहीं आता पार्टनरशिप फर्म में तो क्रेडिट हो जाता है ना सीधा पार्टनर में, ऐसे ही ये को पार्टनर में क्रेडिट कर सकते हैं, अनइवन और इवन। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इवन, अदरवाइज अनइवन। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी बोलिए सर। जैसे आपने बताया कि को पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट कर सकते हैं करंट ईयर्स इनकम, तो इन दैट केस अगर करंट ईयर का प्रॉफिट करंट ईयर में विड्रॉ नहीं हुआ, बल्कि सर, क्रेडिट कर दिया तो विड्रॉ हो गया ना, फिर बाद में Okay. निकाल लेना। ओके, क्रेडिट करके बाद में निकाल लेना चाहिए। वैसे So भी this- एचयूएफ में 10 लाख से ऊपर रखना ही नहीं चाहिए अगर इनकम हो जाए तो, so कोई this फायदा ही becomes नहीं। a good tax planning. हाँ, प्लानिंग करिए ना कि 10 लाख से ज्यादा इनकम कमा के क्या करेंगे, वहां भी 30 देना है, वहां भी 30 देना है। एक और बता दूं, एचयूएफ में प्रॉपर्टी ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बिकती नहीं है। लोग कहते हैं यार ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं, पता नहीं कौन कौन से को पार्टनर है, बाद में कोई भी खड़ा होकर कह देगा मेरा राइट था इसमें, मेरे से तो साइन कराया ही नहीं। आप बात समझ रहे हैं? एचयूएफ की प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल बिकती है, तो एचयूएफ में ज्यादा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते, हालांकि कर्ता के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लेते हो, लेकिन राइट तो सभी मेंबर का है ना, राइट तो सभी मेंबर का है। तो कोई भी खड़ा होकर बाद में तंग करता है, इसलिए लोग एचयूएफ की, और एचयूएफ को लोन भी नहीं मिलता है, बैंक लोन नहीं देता एचयूएफ को, और बैंक तो उस पार्टनरशिप फर्म को भी लोन नहीं देता जहां एचयूएफ का कर्ता, जो एचयूएफ का कर्ता वहां पर मेंबर है, पार्टनर है। बैंक नहीं लोन देता एचयूएफ को, इसीलिए नहीं देता यार कि पता नहीं कौन है, एचयूएफ को लोन नहीं मिलता है। तो एचयूएफ के लिए बिजनेस करो, अपने पैसे से करो, दूसरा लोन ले, बैंक नहीं देगा। ये भूल जाना कि बैंक लोन दे देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। एचयूएफ नहीं को देते। और जिस फर्म में एचयूएफ का कोई मतलब एचयूएफ पार्टनर होती है थ्रू करता, उसको भी लोन नहीं देते वो तो। यहां तक रिस्ट्रिक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है इंटरनल। लेकिन मैंने कहा एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, करंट ईयर का प्रॉफिट बांट सकता है। अगर आपकी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल बांटना पड़ेगा। कैसे बांटोगे? मैंने बताया ना, पर स्ट्राइप पर कैपिटल। पर स्ट्राइप पहले बच्चों में और फिर उसके बाद उनके बच्चों का, पर स्ट्राइप पर कैपिटा बटता है डाउन द लाइन जब है। और सुनिए, चाइल्ड इन द वूम इज ऑल्सो ए को पार्टनर इफ ही और शी इज बोर्न अलाइव। चाइल्ड इन द वूम, चाइल्ड इन द वूम, माँ के पेट में जो बच्चा है पैदा हो गया तो वो भी को पार्टनर बन जाएगा जब जिंदा पैदा हुआ। मुर्दा पैदा हुआ तो वैसे कुछ नहीं मतलब है। आप समझ में आ रहा है? को पार्टनर ये होते हैं, किसी को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, मैं किसी को पार गद्दी नहीं दे सकता। बाय बर्थ उसका राइट है, बाय बर्थ उसका राइट है। ये मैंने बता दिया
और आपको कहा पार्टीशन करना है तो कंप्लीट पार्टीशन करना। लेकिन हमने तो सुमित जी लोगों को देखा है कि बाप और बेटे में पार्टीशन हो जाता है, उसके नीचे पार्टीशन ही नहीं करते, जनरली वही होता है। और स्मॉलर एचयूएफ बना रखी, अलाउड ही नहीं है। ऐसे नहीं होता कि भैया बाद में आपस में बना ली तो बेटे ने अपनी बना ली बाप की पार्टीशन से। नो 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 नो, बाप की पार्टीशन से आपको आगे पार्टीशन करना है टिल द लास्ट कैटेगरी, तो उसमें रहती नहीं है, वो तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन स्मॉलर एचयूएफ लोगों ने बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं। और कईयों ने तो सर ये भी बनाई है, वो जो कह रहा था फादर एफ सन 1 एक एचयूएफ उससे बना दी, फादर S2 उससे भी बना दी, फादर S3 उससे भी बना दी। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है भैया? कहता जी हम तो असेसमेंट करा रहे हैं। मैं कहा धन्यवाद, आप कराते रहिए, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। वो 56 से पहले सब कुछ था, अब कुछ नहीं है। बेटा वही हक है जो बेटी का, दोनों उसी में फादर की बाई बर्थ है, फादर भी नहीं निकाल सकता उनको, फादर भी नहीं निकाल सकता। हाँ मैं रेलिंक्विश कर सकता हूं अपना शेयर, मैं छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात है, छोड़ दीजिए, अदरवाइज ना, नहीं तो पार्टीशन होगा तो कंप्लीट पार्टीशन होगा। क्लियर है सर? मैं चाहता हूं कि आप सवाल ले लो, बहुत सर दो ही फर्स्ट क्लास सवाल सवाल है, है? दो ही सवाल है सर अभी। अभी दो ही हैं, वेरी गुड, पहले दो लीजिए फिर मैं और चीजें बताता हूं फिर। एक तो ये है सर कि नो HUF partition is made but mutually agreed and all members are residing separately. Now money received from sale of common land, what would be tax treatment in respect of ये capital? तो पार्शियल पार्टीशन है, आपस में जो मर्जी डिसाइड करो। यू हैव टू डू पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स। बाय मीट्स एंड बाउंड मीन पूरा अलग अलग करना है, बाय मीट्स एंड बाउंड, नहीं तो कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता है। अगर पार्शियल है तो एचयूएफ को टैक्स लगाते रहो, टैक्स एचयूएफ देगी और उसके बाद जो बचेगा वो लेना। अभी मैं कुछ और भी बताने जा रहा हूं कि आपको पार्टीशन कैसे करना है। सेक्शन 171 है, 171 about the income tax act. If the HUF is hitherto assessed, if the HUF is hitherto assessed, अगर असेसमेंट कभी हुई नहीं है तो फिर तो वो HUF को वो इनकम टैक्स वाला मुझे क्या लेना देना। अगर HUF की एक बार भी असेसमेंट हो गई, चाहे वो स्क्रूटनी हुई चाहे वो समरी, मैं नहीं कह रहा, if the HUF is here is assessed and a claim is made that a partition has taken place in the HUF, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है एओ को कि पार्टीशन हो गया है, आप कर लीजिए या करने जा रहे हैं। और पता क्या रूल है, पहले तो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, फिर एओ को सभी मेंबर्स को नोटिस देना जरूरी है, उनको बुलाकर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है और फिर पार्टीशन करना पड़ता है। लोग कहते हैं हमने तो कभी सुना ही नहीं, पहले तो हमने कभी इन्फॉर्म नहीं किया कि हमारा पार्टीशन हो गया। वो तो सबसे बड़ी गलती है, वो तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। और इन्फॉर्म कर भी देते हैं तो एओ कहता है हमें तो पता ही नहीं है क्या करना है, पार्टीशन ऑर्डर उसने पास करना है। मैंने एक बार कहा कि सर हमारा पार्टीशन हो गया मेरे क्लाइंट का, तो सर ये मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कहते ये पढ़े लिखों ने बड़ा तंग कर रखा है, ये कौन सी चीज है भैया, हमें तो पता ही नहीं। मैंने कहा जी, कहते क्या करना पड़ेगा। मैं जी आपको ये मैंने नोटिस दे, आपको ये इन्फॉर्म कर दिया, अब आप सारे मेंबर्स को ये मैंने बताया ये है, इनको नोटिस इशू करेंगे, इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, फिर इनसे पूछेंगे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, उसके बाद पार्टीशन ऑर्डर पास करना है। कहते ये क्या मुसीबत ले आए, हमें तो कोई पता ही नहीं। कहता ऑर्डर ही बना लाना और नोटिस इशू करवा दो तो मैं मान लूँ। उसको कुछ नहीं पता था, लेकिन हमारा काम है इन्फॉर्म करना, बाकी ये करे या ना करे हम नहीं जानते, लेकिन इन्फॉर्म करके हम म्यूचुअली अपना पार्टीशन कर लें। क्योंकि पार्टीशन अगर अपना एग्रीमेंट नहीं हुआ तो अनइक्वल नहीं हो सकता, इक्वल होगा। अगर एग्रीमेंट हो जाए तो अनइक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट पार्टीशन करना है डाउन द लाइन अमंग्स ऑल को पार्टनर 4 जनरेशन तक, ताकि खत्म वो फादर की एचयूएफ खत्म, आप अपनी एचयूएफ कंटिन्यू करो। अगर आपने पार्टीशन किया, जिसकी भी एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 1978 के बाद। 31 दिसंबर 1978 से पहले पार्शियल पार्टीशन अलाउड था। क्लियर हुआ ये बात? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वो कंप्लीट पार्टीशन हो गया और उसके बाद अगर सन का कोई बेबी बॉर्न हुआ तो उसका शेयर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब पार्टीशन हो गया तब तक जो है वो हो गया। अब उसका अपना पैसा है,
अपने पैसे में सन का राइट हो गया, विल करना है तो अलग बात है, नहीं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लग जाएगा। वो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा 1956, उसमें क्या बात है। बड़ा बड़ा प्यार मोहब्बत कर रहे हैं अपने बेटे से, बाप का पैसा लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अरे आपके बच्चे का हक है, बाई 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 बर्थ राइट है उसका आपकी प्रॉपर्टी में, जब तक विल नहीं करते आप। अगर विल कर दो तो अलग बात है, नहीं तो बच्चों का पूरा हक है। आपको बताया लीगल एयर ऑफ फर्स्ट कैटेगरी हिंदू सक्सेशन है 1956 में, यही तो लॉ है और क्या है। चलिए आगे बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर ये मेरे एक क्लाइंट है, उनके ना फादर के नाम पे एक मेडिकल का होलसेल बिजनेस है। हाँ, ठीक है, अभी वो फादर के एचयूएफ के नाम पे, मतलब ठीक है, फादर अब वो के एचयूएफ का है, ठीक है। फादर के एचयूएफ के, अब वो फादर के एचयूएफ के बिजनेस को वो लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। कर दीजिए, तो सर उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। सर एसेट्स को क्या किया जाए? नहीं देखिए पहला पॉइंट ये है, जब बिजनेस ट्रांसफर करेंगे तो हाँ। कोई ना कोई तो यहाँ का कर्ता पार्टनर बनेगा वहां। हाँ हाँ you can form a partnership. HUF cannot be a partner, but हाँ। HUF can be a partner through कर्ता। ठीक है। अब अगर HUF के एसेट्स हैं तो जब HUF एक मेंबर एसेट लाता है 45(3) लगता है। पार्टनरशिप फर्म में कोई एसेट लाते हो इन काइंड तो 45(3) लगता है ना। 45(3) में लिखा है कि वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भैया उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लाना, नहीं तो 56(2)(10) लग जाएगा। 56(2)(10) लग जाएगा। तो लीजिए, कर dीजिए, मना कौन कर रहा है। अच्छा मार्केट वैल्यू पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एचयूएफ को कैपिटल गेन लगेगा। 45(3) पढ़ लो ना। पार्टनर जो भी कैपिटल काइंड में लाता है वो 45(3) लगता है, बात खत्म। लेकिन 45(3) में लिखा है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और लोग कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी ले आया 5 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 3 करोड़ रुपए में ले आया। अरे तो ले तो आए, हम 45(3) नहीं लगाएंगे, लेकिन 56(2)(10) तो लगा देंगे कि फर्म ने 5 करोड़ की चीज 3 करोड़ में ली है तो 2 करोड़ रुपए पे टैक्स लगा दो फर्म को। तो इसलिए फेयर मारे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे ही लाना, नहीं तो मारे जाओगे। 45(3) रेड विद 56(2)(10। लोग 45(3) पढ़ लेते हैं, 56(2)(10) पढ़ते ही नहीं। भैया पहले 56(2)(10) अलाउड था क्योंकि वहां 56(2)(7) था, अब तो 10 आ गया। एनी पर्सन रिसीव फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन a sum of money exceeding 50,000, movable property exceeding 50,000 और immovable property exceeding 50,000। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लेनी पड़ेगी। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे लोगे तो सीधा बाकी टैक्स लगा देंगे फर्म को। एचयूएफ को कुछ नहीं कहेंगे, फर्म को लगा देंगे। सर मुझे वो साइटेशन याद नहीं है, लेकिन हाँ। एक ऐसा केस मुझे ध्यान में आता है कि जब एक डीमिंग प्रोविजन अगर अलाउ कर रहा है तो दूसरे डीमिंग प्रोविजन सर का डीमिंग इफेक्ट नहीं है, 56(2)(10) लग रहा है। आप 45(3) और 50(c) देख रहे हो, मैं आपको तो लगा ही नहीं रहा, मैं तो रिसिपिएंट को लगा रहा हूं, दूसरी पार्टी को लगा रहा हूं। आपने जो मर्जी कह दिया, मैंने मान लिया आप ही वैल्यू रिकॉर्डेड आपका डीम्ड प्रोविजन है, 50(c) भी डीम्ड प्रोविजन है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं कुछ कहा ही नहीं रहा, मैंने कहा कर दो वैल्यू रिकॉर्डेड। लेकिन रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू डीमिंग कहां से आ गया? वो तो प्रॉपर्टी अक्वायर्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यू रिसीव इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ए पार्टनर, सो इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ अबव 50,000। जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आप वो डीमिंग नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। एक रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसफर में तो मान लिया डीमिंग प्रोविजन आपका नहीं लगेगा 50(c), 45(3) लगेगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उधर तो थैंक यू ना करो ना, उधर तो रिसिपिएंट को लगना है, तो वो नहीं होगा। आपका प्रोविजन ठीक है लेकिन ये नहीं, यहां नहीं लगना। चलिए आगे पूछिए सर। आगे सर इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं और। कैन इंटरेस्ट फ्री लोन बी टेकन बाय एचयूएफ फ्रॉम इट्स मेंबर्स? यस, इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकता है, लेकिन क्या होता है वो प्लानिंग लगती है, क्योंकि आप एचयूएफ का वो क्रिएट कर रहे हो, कैपिटल इनकम क्रिएट कर रहे हो। चार्ज कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो प्लानिंग लगती है कि इंटरेस्ट फ्री दिया है, इसका मतलब शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पर इनकम कमाएंगे। छोटी मोटी तो चला देते हो, आपको पता है, अदरवाइज द पर्पस समझ में आ रहा है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हो तो इसका मतलब इनकम वहां पे जो आएगी आप उसको दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। मैंने 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, अगले ने एफडीआर बनवा ली एचयूएफ ने 1 करोड़ की, तो क्या नजर नहीं आ रहा क्या है? ये नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है कि आप अपनी इनकम वहां शिफ्ट कर रहे हो।
तो वहां पर वो प्लानिंग मानी जाएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइडेंस माना जाएगा, टैक्स अवॉइडेंस। हाँ, अच्छा, next is a question. If we have purchased immovable property in the name of HUF, what course of action has to be done to avoid future dispute if they पहले do तो not want to एचयूएफ के नाम पे dispose? प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती, थ्रू कर्ता या थ्रू मेंबर खरीदी जाती है। एचयूएफ के नाम पे रजिस्ट्री नहीं होती, रजिस्ट्री होती है कर्ता ऑफ सच एंड सच एचयूएफ, मेंबर ऑफ सच एंड सच एचयूएफ। बेनामी लॉ में भी लिखा है कि आप मेंबर या कर्ता के नाम ले सकते हैं और फंड्स एचयूएफ के होने चाहिए, याद है, बेनामी लॉ में भी है। तो मेरा पॉइंट ये है, नॉर्मली कर्ता के नाम पर लिखा जाता है थ्रू एचयूएफ ऑफ एचयूएफ, कर्ता या मेंबर के नाम पे ली जाती है और ट्रांसफर करते हुए आराम रहता है, लेकिन हक सबका है। इट इज नॉट मेंट फॉर हिम, इट इज फॉर ऑल, इट इज फॉर ऑल। Next question है, who are the co-partners and members of HUF formed in 1995 and who will get? तो आपने बताया, everyone, daughter son both, daughter son both, grandson granddaughter both, सारे मैंने बताए। वो 1995 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बता तो दिया 2005 में वो जो जजमेंट अभी आई है, मैंने बताया ना आपको, जो जजमेंट आ गई विनीता शर्मा, राकेश शर्मा वाली, उसने कह दिया बेटी कभी भी पैदा हुई, बाप जिंदा था या नहीं जिंदा था 2005 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बेटे का हक है तो बेटी का भी पूरा हक है। ये छोड़ दो कि बाप 2005 को जिंदा होना चाहिए, पहले का मरा हुआ है तो भी उसका हक है। लेकिन 2012 पहले से पार्टीशन हो चुका है, 2012-2004 से, तो कुछ नहीं कहेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए फादर गिव टू सन्स HUF? नो, फादर कैन गिव, बट वो लगेगा 56-10, 56-10 लगेगा, क्योंकि 50,000 से ज्यादा गिफ्ट होगी तो टैक्सेबल हो जाएगी ना। 56-10 लगेगा, दे सकता, कोई भी दे सकता है भाई, फादर, मदर भी दे सकती है, फादर इन लॉ से भी ले सकते हो, देगा नहीं वो, वैसे मदर इन लॉ से ले सकते हो, लेकिन गिफ्ट आपको बता दिया वो टैक्सेबल है अंडर 56-10। 50,000 से ज्यादा है तो। सर, it is advisable to purchase shares of a closely held company of कर्ता? सर कर्ता नहीं, वो कर्ता के नाम लेते हैं, होते तो एचयूएफ के पैसे हैं ना, जो भी एसेट ली जाती है वो कर्ता के या मेंबर के नाम ली जाती है। देखिए एक और चीज बता दूं, एक कर्ता बिजनेस करती हो ना एचयूएफ, तो कर्ता सैलरी ले सकता है रीजनेबल अमाउंट, अगर बिजनेस करते हो। लेकिन अगर कर्ता कहीं पार्टनरशिप में आ जाए ना, तो वो जो सैलरी मिलती है ना कर्ता को, वो उसकी इंडिविजुअल सैलरी होती है, वो पार्टनरशिप, उसकी एचयूएफ की सैलरी नहीं होती, लेकिन जो इंटरेस्ट आता है वो एचयूएफ का होता है, लेकिन सैलरी नहीं होती, क्योंकि कर्ता काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी नहीं होती उसकी एचयूएफ की। समझ में आ रहा है ये भाई? बट कर्ता अपनी एचयूएफ का भी सैलरी ले सकता है रीजनेबल अमाउंट, अगर बिजनेस करता है, अगर बिजनेस नहीं है तो नहीं। सर इसमें क्वेश्चन है कि अगर कर्ता का कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें कि कर्ता शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, तो क्या उस कंपनी में HUF शेयर परचेज कर सकती है? अरे थ्रू दी कर्ता तो कर ही सकती है ना, थ्रू दी कर्ता, लेकिन जो सैलरी मिल रही है डायरेक्टर को, कर्ता को, वो उसकी इंडिविजुअल सैलरी है जो डायरेक्टर बनने की, वो कोई इसकी नहीं है एचयूएफ की। सर नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ, if a karta gives amount to HUF as gift and there is no evidence except account payee check, then is it exempt? सर देखिए एविडेंस क्या होता है, गिफ्ट एक लेटर होता है प्लेन पेपर पर, सुन लीजिए, प्लेन पेपर पर गिफ्ट जब भी लेनी हो ना, तो उसमें डोनर के साइन होने चाहिए और डोनी की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आई हियर बाई एक्सेप्ट। अगर डोनी ने एक्सेप्टेंस नहीं करी तो वो गिफ्ट मानी नहीं जाती है, तो अगर आपको कागजी तो बनाना है यार, डोनर के साइन और डोनी को एक्सेप्ट भी करना है। कई लोग क्या करते हैं, डोनर के साइन करा के दे देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो वैलिड नहीं है, डोनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ही शुड एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, तो ही शुड एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, डोनर डोनी के साइन हो, आपको प्लेन पेपर पे भी गिफ्ट अलाउड है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट पे रजिस्ट्री होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट तो प्लेन में होती है, प्लेन पेपर पे ऑन डिलीवरी, तो इसलिए ये ध्यान रखना। I think there is no more question as of चलिए now. वैसे भी आजकल वो आज वो शुरू होने वाला है आईपीएल,
तो मैं वैसे भी जल्दी खत्म करना चाहता था। 7:30 है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही है ना, आईपीएल तो लोगों ने देखना है। सर आप एक बता रहे थे कि आप पार्टीशन कैसे करेंगे, उसके बारे में बताना चाह रहे थे आप। मैंने कहा पार्टीशन जब करना है तो एक तो आपका असेसमेंट ऑलरेडी हो रही है ना, तो आपको एओ को इन्फॉर्म करना है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। एक चिट्ठी लिखनी है कि पार्टीशन हैज टेकन प्लेस और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है, या वो करा दे, हम उसको लिख के दे देते। फिर वो सबको इन्फॉर्म करता है, चिट्ठी लिखता है, नोटिस देता है कि आप अपीयर हो इस डेट को। वो सिर्फ यही पूछना चाहता है कि सबकी कंसेंट है ना, क्योंकि अनइवन भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। वो सबकी कंसेंट होने के बाद ऑर्डर पास कर देता है, वो पार्टीशन ऑर्डर बोला जाता है। लेकिन 90% में वो ऑर्डर उसको पता ही नहीं है, वो पास करता ही नहीं है। लेकिन हमें इन्फॉर्म करना जरूरी है, फिर हमारी ड्यूटी नहीं है। वहां लिखा है एओ शैल इशू नोटिस, शैल लिखा है, पर लेकिन मैंने देखा उसको पता ही नहीं है, वो डरता ही नहीं। तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? चलिए, Since there is no more question, हाँ, तो अब हम लोग इसमें अगर कोई टॉपिक सर आपके एंड से कुछ बचा हो तो हम लोग उसमें आगे डिलीवरेट कर सकते हैं। सर मैं एक ही बता रहा हूं कि एचयूएफ अगर आप बनाते हैं तो ये सोच के चलना कि कोई भी पार्टीशन करा सकता है, कोई भी चाइल्ड। मनाना पड़ता है, नहीं तो झगड़ा हो गया तो कोई भी करा सकता है, कोर्ट में जाके भी करा सकता है। आप मना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता मैं बाप हूं, मेरा माल था, तुमने एचयूएफ बना ली, बात खत्म हो गई। हम नहीं जानते, अब तो बाय बर्थ सबका राइट है, बाय बर्थ सेम राइट एज दैट ऑफ ए डॉटर का भी, सन का। और मैंने ये बोला डॉटर अपने फादर की एचयूएफ की है, लेकिन अपने हस्बैंड की एचयूएफ की करता नहीं है। वो मेंबर भी नहीं है, मेंबर है, को पार्टनर नहीं, को पार्टनर नहीं है, मेंबर। और मैंने ये बता दिया वाइफ को शेयर तभी मिलता है जब कर्ता की ही एचयूएफ हो। फादर की एचयूएफ में डॉटर इन लॉ को शेयर नहीं मिलता है, डॉटर को मिलता है, डॉटर इन लॉ को नहीं मिलता। लेकिन अपने हस्बैंड की एचयूएफ में वाइफ को मिलता है, जिसने अपनी बनाई, उसको वाइफ को इक्वल शेयर है एज दैट ऑफ ए सन एंड डॉटर, और उसको भी उतना ही मिलता है। और मेरे मरने के बाद मैं प्लीज, मैं एचयूएफ में अपना शेयर विल कर सकता हूं, बाकी शेयर विल नहीं कर सकता। अगर एचयूएफ में जितना मेरा शेयर है उस डेट को, मैं उतना ही विल कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा विल नहीं कर सकता। अगर मेरा सेल्फ का शेयर विल नहीं हुआ, सपोज मैंने अपना शेयर विल नहीं किया और मेरी डेथ हो जाती, तो व्हाट वुड हैव बीन माय शेयर हैड आई बीन अलाइव? वो वाला शेयर मेरे लीगल ईयर को हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता है, सर्वाइवरशिप में नहीं जाता। सपोज कीजिए मेरी एचयूएफ है, उसमें मैं था, मेरी बीवी है, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो मेरा अगर मैं पार्टीशन करूं तो मेरा कितना शेयर है? 1/5। 1/5। तो या तो मैं 1/5 शेयर का विल कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मेरा 1/5 है, उससे ज्यादा विल नहीं कर सकता। लेकिन मैंने 1/5 शेयर का विल नहीं किया और मेरी डेथ हो जाएगी, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा। तो मेरा 1/5 शेयर का जो पैसा है ना, जितना भी मेरा शेयर बनता है, वो मेरे लीगल ईयर को जाएगा इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट एज एचयूएफ। तो आप कहेंगे पार्शियल पार्टीशन तो हुआ नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? चलता रहेगा एचयूएफ, लेकिन पहले एचयूएफ को टैक्स लगाएंगे, फिर जो 1/4 शेयर मेरा 1/5 शेयर था वो मेरे लीगल ईयर को मिलेगा एज टेनेंट्स इन कॉमन। लेकिन शेयर का टैक्स एचयूएफ को ही लगेगा क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ है। ये जरा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप पार्टीशन करें तो कंप्लीट होता है। मेरी डेथ हो गई, अब मेरा शेयर हिंदू सेक्शन एक्ट के अंदर तो मेरे लीगल ईयर को जाएगा। मेरे लीगल ईयर तो इंडिविजुअल्स हैं, तो जाएगा, उसमें मेरी मां भी हो सकती है। तो वो वाला शेयर जितना मेरा बनता था हैड आई बीन अलाइव विल गो टू माय लीगल ईयर। लेकिन रुकिए, कंप्लीट पार्टीशन जब तक नहीं होगा तब तक एचयूएफ उस पर टैक्स देगा और मैं अपना मेरा जो शेयर बनता था वो मेरे लीगल ईयर को मिल जाएगा। ये समझ में आया? नहीं आया ना? मैं बताता हूं। मेरा कितना शेयर था? 1/5, ठीक है। एचयूएफ ने कमाया 10 लाख, 10 लाख पे टैक्स दे दे। मेरी डेथ हो गई है, मेरा शेयर बना 10 लाख पे टैक्स दे गया, चलो 1 लाख कुछ हजार बन गए, बाकी 9 लाख बचे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 9 लाख बचे। 9 लाख में मेरा कितना शेयर था अगर मैं जिंदा होता? तो 180।
180 जो शेयर है उस एचयूएफ का शेयर है। टैक्स तो एचयूएफ ने दे दिया पूरे पे, वो 180 मेरे लीगल एयर है कैटेगरी 1 का, लेकिन चलता रहेगा। वो 180 में उनको दे सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ओके, बात समझ में आया? 180, लेकिन टैक्स एचयूएफ को लगता रहेगा जब तक कि मैं पार्टीशन नहीं करूं। एचयूएफ को लगता रहेगा। एक और मर गया, उसका भी शेयर है, उसका भी शेयर उसके लीगल एयर को जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में, विल नहीं करे तो। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता था, ये ध्यान रखिए। लेकिन कोई करता ही नहीं, सभी कहते हैं मर गया खत्म हुआ। अरे ऐसा कोई रूल नहीं है, मर गया तो खत्म हुआ, उसका जिंदा रहता राइट। ठीक है जी, चलिए। सर एक और क्वेश्चन है, हाँ, कैन अ सिख क्रिएट एन एचयूएफ? Hindu undivided family includes Jain, Sikh, Buddhist. राइट, मुस्लिम नहीं, जैन, सिख, बुद्धिस्ट आर पार्ट ऑफ हिंदू। आप जब हिंदू सेक्शन एट पढ़ाया था, मैंने याद है वहां बोला था हिंदू इंक्लूड्स जैन, सिख, बुद्धिस्ट, दे आर पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यस सर। 2-3 क्वेश्चंस और आ गए। मुस्लिम कैन नॉट क्रिएट एचयूएफ। एंड व्हाट अबाउट क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस कैन नॉट, दे आल्सो कैन नहीं नॉट। नहीं, वो तो नहीं, वो तो सिर्फ हिंदू। हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, पारसी, बुद्धिस्ट, सॉरी, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। 2 क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस टेकअप करते हैं। 50,000 से अबव गिफ्ट फ्रॉम थर्ड, कहां गया? 50,000 से अबव गिफ्ट फ्रॉम पर्सन, विल इट बी exempt in gift tax at the time of HUF formation? गिफ्ट टैक्स कहां है? गिफ्ट टैक्स कहां से आ गया भैया? 56(2)(10) लगता है अब तो। गिफ्ट टैक्स कहां से आ गया? वो 56(2)(10) के बारे में बात कर रहे हो। 56(2)(10) का तो लगेगा ही 50,000 के ऊपर। नहीं, मेंबर से लोगे तो क्या दिक्कत है? 50,000 टोटल अलाउड है, मेंबर से जो लोगे वो तो अलाउड है ना, एग्जेम्प्ट है। टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन को तो 56(2) में गिफ्ट लगेगा ही। सर एक नॉन HUF का क्वेश्चन है, अखिल पुद्रा जी जानना चाहते हैं। क्वेश्चन है, 1 मिनट सर, यस मैम। अरे दोनों पूछ लो ना, आप भी पूछ लो, फिर मैडम पूछ लेगी, पूछ लो आप। अच्छा ठीक है। नॉन HUF का क्वेश्चन है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 56(2) इन केस ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ ऑक्शन फ्रॉम बैंक अंडर। कुछ नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। आपको वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भिजवा कर करवा लो, अदरवाइज लॉ कुछ नहीं है। बैंक से करो या कहीं से करो, 50C लगता है। ये अभी तक ये कोई एक्सेप्शन नहीं दी हुई है। हाँ, 56(2)(10) में जाकर वैल्यूएशन ऑफिसर मान जाए वो अलग बात है। वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। यस मैम, प्लीज गो अहेड। यस सर। सर यदि कोई HUF है फादर का, हाँ, वो अपने HUF का विल बना सकते हैं क्या कि मेरे HUF का? अपने शेयर की गिफ्ट, अपने शेयर की। हाँ, अपने ही शेयर की। तो हाँ, अपने will बना शेयर को सकते हैं, किसी को भी दे will सकते करके हैं ना? किसी को भी दे सकते हैं अच्छा ठीक है, मतलब कोई अपने HUF शेयर की। अगर हाँ। नहीं करेंगे बिल तो फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा अपने शेयर का। तो सर वो HUF का जो शेयर है अपना, वो किसी HUF को भी दे सकते हैं क्या अपने बेटे के HUF में? वो फिर कंटिन्यू करेगी ना, पार्शियल पार्टीशन नहीं अलाउड है। नहीं करते ऐसे ना, वो विल करेंगे तो पार्शियल पार्टीशन कैसे होगा? तो विल वो हमेशा किसी मेंबर के नाम कर दें, किसी और को करेंगे तो हमेशा दिक्कत ये होगी कि कंटिन्यू करेगा पार्टनरशिप को, उसको HUF को टैक्स लगेगा, फिर वो वाला जो पैसा उसका शेयर बनता है वो उसको दे देंगे। ओके। But it will continue to be taxed in the hands of the HUF till there is a complete partition. कोई दिक्कत नहीं है, HUF को टैक्स देने के बाद उनका जो शेयर बनता है वो उनको पकड़ा दिया जाएगा। और सर ये मेरा पर्सनल एसेट है, वो मैं अपने बेटे के HUF के नाम पे कर सकता हूँ क्या विल में? कोई भी कर सकता है, मैंने तो कहा है HUF क्रिएटेड बाय विल होती है। आप अपने नाम पे लिख दो, आफ्टर माय डेथ रिसाइटल होना चाहिए, दिस प्रॉपर्टी विल गो टू द HUF ऑफ माय सन। ओके। HUF डॉटर की नहीं होती, सन की होती है। हाँ सर, डेथ बेड पर कोई अगर है और वो अपने सन के HUF को बड़ा अमाउंट गिफ्ट देना चाहता है, 50 लाख, 1 करोड़, मना थोड़ी है। क्या एमसील डॉक्यूमेंट लगवा लेना, एमसील समझे? नहीं सर। क्योंकि आपने देखा एक टीवी पे आया था कि वो बेटा जबरदस्ती साइन करवा रहा था बाप से, ऊपर से पानी गिर गया, वो 1000 था, पानी गिर गया तो 1 मिट गया। तो उसने कहा एमसील नहीं लगाई थी आपने, और पाइप में एमसील लगी होती तो पानी नहीं आता ना।
तो ये कोर्शन फ्रॉड वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्शन है तो बात अलग है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से कराया तो बात अलग है। अगर फादर होश हवास है तो किसी को भी दे सकता है। वो क्या सर इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिससे 5210 अप्लाई ना करे? डॉक्यूमेंट तो कोई प्लेन पेपर पे भी बिल अलाउड है यार, प्लेन पेपर पे भी अलाउड है। सर यहाँ लेकिन बिल डॉक्टर साथ में लिख दे ये साउंड माइंड का था, और एक और वकील लिख दे कि हाँ भाई ये तो इसको समझा दिया था, तो कर दे। लड़ाई सर ये झगड़ा नहीं बिल, होना चाहिए। सर इसको विल माना जाएगा क्या? सब जब वसीयत ही होती है जब लिखवाया जाता है। एक फादर के सर 2 अगर बेटे गिफ्ट हैं। लिखना चाहता है तो गिफ्ट लिख दे मरने से पहले, तो गिफ्ट में तो डोनर एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर वो चैलेंज होती है ना, चैलेंज ये करते हैं कि बाप से जबरदस्ती करा लिया, वो तो बात अलग है। नहीं सर, जैसे एक फादर के 2 बेटे हैं, हाँ। एक का एचयूएफ पहले से है, दूसरे का एचयूएफ वो बन रहा है या बनना कर सकता चाहता है, फादर कर सकता है, कर तो सकता है, डेथ बेड पर लेकिन झगड़ा नहीं हो जाए। झगड़ा ये नहीं पहले होगी, बता दिया। झगड़ा अगर नहीं भाई होनी में है। नहीं है तो कर लो, वो तो आप बिल में लिख लो, बिल बेटर है, बिल कर लो या गिफ्ट ले लो। गिफ्ट में तो टैक्स लग जाएगा, बिल में तो टैक्स भी नहीं गिफ्ट लगेगा। अरे गिफ्ट जब मरने ही वाला है तो गिफ्ट क्यों लेते हो, बिल ही करा लो ना, ताकि वो टैक्स भी नहीं लगेगा। नहीं तो गिफ्ट में तो 2.5 लाख से ऊपर का ऊपर टैक्स लगता है। मेरी बात को समझ लेना, बिल में कोई टैक्स नहीं है। Sir, thank you very much. I think I have taken up all the questions. There are small questions जिसमें कि आप नहीं कह रहे आई हैव टेकन अप, ये नहीं कहते कि यू हैव रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस। एक्चुअली सर जिन इश्यूज पर आपने ऑलरेडी कह दिया था, तो उसको मैंने लिबर्टी ले ली खुद से नहीं, वो अच्छा किया, वो अच्छा किया, करने के लिए। अच्छा किया, अच्छा किया। Sir, we are really thankful to you for such a nice deliberations. आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एचयूएफ के फॉर्मेशन के बारे में और उसके टैक्सेशन के बारे में बताया। मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके मन में जितने भी डाउट्स होंगे वो आज सारे क्लियर हो गए होंगे। तो सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Welcome. I hand over the proceedings to CA Pankaj Makkad. Pankaj, okay, he's on some call. So Sir, we'll hand over for vote of thanks to Prabhat. Prabhat, are you there? Pankaj, I think Prabhat is not there. You continue with the vote of thanks. Yeah, ma'am. So indeed, so it was an amazing session. I guess the whole coverage was not yet done. We would be having, if we allow our participants to, we can have numerous more questions regarding the same, and people can have much more doubts and issues. Because we had so deep clarity, that's why only the doubt comes. So again, sir, thanks a lot for being part of this session. It's Welcome. always amazing, sir, to have you with us. Be it, sir, the last session which we had face-to-face in Ranchi, that session was with you only, sir. The last Yes. face-to-face seminar that was held in Ranchi was held with you, sir. And again, this amazing session on HUF, much praised. And I guess most doubts and questions also were raised on this seminar itself. So thanks a lot, sir, for Welcome, clearing welcome. the Thank doubts. you, max thank you. possible. All the best. Take care. Thanks a lot, sir, for Take care. Stay healthy, being available. everyone. Stay healthy. Take care, please. Thank you. Thanks, sir. Thanks to our sir, good night. program coordinator, Thank you, sir. Yes, Sumita Thank Kamal, you. for being available and for coordinating all the session. And at last, thanks to all our patient listeners. Thank you, Pankaj. Thank you. Signing off. All the best. Thank you, sir. Thank you. Taking leave. Thank you, sir.